All right. So, ladies and gentlemen, आप सबको नमस्कार। मैं फिर से राम मिश्रा, आपका एकेडमी मैनेजर, आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू दिस important trainings on how to balance your chakras with Healy. So today we have two experts who are in the practice, and they have a wealth of experience if we talk about how frequency works and how with the help of healing you can actually balance your chakras. So without much delay, let us all welcome our own executive director and director leader in Healy World. Let's welcome with a big round of applause Dr. Raghu Arya and Dr. Vandana Mehta on the virtual screen. Dr. Sir, can I have your videos on, please? Yeah. All Good evening, right. friends. So Yes. I think without much delay, directly I'm going to hand over this session to both the experts so that they can take it forward to you. Last time हमने 3 चक्रास को कवर किया था, बाकी जो 4 चक्रास हमारे रह गए थे वो इस बार हमें कवर करने हैं, and I'm sure we are all set for it. Over to you, Dr. Raghu and Dr. Vandana. Thank you. Yeah, Dr. Vandana, please start. Namaskar mitro, Subha Sandhya. Thank you so much for giving us this opportunity to serve you. I am Dr. Vandana Mehta, consultant homeopath and frequency therapist and a healer. Last time हम लोग ने 3 चक्रा लिए थे. We have taken 3 chakras last time. So I'll just like to summarize a thing, but before that I like to introduce little part about the chakras. So basically chakras are nothing but the energy centers. So we get life force energy from through chakras in our body, and chakras are in our subtle bodies. It is not in physical bodies, but they govern our physical body organs and systems very nicely. So tuning the chakras continually is vital for your regular health and for your growth and for your vitality. So chakras in Hindi we call as nadi. So basically there are 88,000 chakras overall in our body. Can you imagine that thing, friends? Out of that, we have around 21 chakras which are very, very essential, important. And from that 21, we have 8 chakras. 7 chakras are located in the our spinal column, and one chakra is we call as a base of all chakras, that is a kundalini. So there are 8 chakras are there. And about these chakras, it's like we tell that there are 7 bodies. So we have in rainbow we have 7 colors. So we have 7 bodies, we have 7 chakras, and each chakra is a specific to a particular area and system. Chakra 1, 2, and 3, they are related with the more physical growth, and other chakras, chakra number 4, chakra number 5, and chakra number 6, they are related with your mental, spiritual, and metaphysical aspects of the life. So this is the brief. So we'll start with the slides, chakras. Dr. Raghu, you'd like to add something? You are on mute. Yeah. Good evening, friends. फिर आज हम ये ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो लास्ट टाइम अपन चक्रा के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हम चक्रास के बारे में आज 2 डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है. एक हीली, दूसरा मैग हीली. आप सभी लोगों को मालूम है मैग हीली में जो मैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से, बायोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से अपने चक्रास को बैलेंस करने का प्रोग्राम है.
और हीली के अंदर एक एक चक्रा जो भी ऑन रिक्वायरमेंट बेस हम लोग उनको चक्रा को बैलेंस करने का फ्रीक्वेंसीज है। तो फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, अपने इंडियन आयुर्वेद में बोला जाता है स्थूल सूक्ष्म काया शरीर। जो सूक्ष्म शरीर स्पिरिचुअल बॉडी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना प्राण शक्ति को, जो सोच और जो विचार और फीलिंग्स जैसे अपने बॉडी में बनते रहते, उसके हिसाब से अपने बॉडी में चक्रास का वाइब्रेशन होता रहता है मेंटल लेवल में। उसी तरीके से स्पिरिचुअल लेवल में जो पूजा पाठ प्रेयर्स हम कर रहे हैं, उससे भी अपने चक्रास में वाइब्रेशंस और चक्रा का एनर्जीज डेवलप होना, बैलेंस होना अपने इंडियन सिस्टम में कई सालों से हम लोगों को प्रैक्टिस में है। तो चक्रास क्या करते हैं एग्जैक्टली, पर हम सोचे तो पहले चक्रास अपना स्पिरिचुअल बॉडी को अलाइनमेंट करता है। जो प्राण शक्ति है, जो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं हम, वो प्राण शक्ति सहस्त्र चक्रास से लेके सुषुम्ना नाड़ी, जो मिडिल में जो नाड़ी है उसका नाम क्या है, सुषुम्ना नाड़ी, और ईड़ा पिंगला दो नाड़ी है, उनके अंदर प्राण शक्ति जाते हुए 72,000 नाड़ियों में अपना प्राण शक्ति प्रसारित होता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्पिरिचुअल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। तो ये स्पिरिचुअल बॉडी में जब प्राण शक्ति, हम लोग मालूम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग सुने होंगे, जैसा अपना सोच, जैसा अपना विचार, उसी तरीके से प्राण शक्ति भी वही अपना सोच के हिसाब से अपना प्राण शक्ति भी अपने बॉडी में प्रसारित होता है। ये कई युगों से हमारा प्रैक्टिस में मालूम है। इसलिए क्या करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में सब लोग प्राण शक्ति को डेवलप करने के लिए, स्पिरिचुअल पावर्स को एनहांस करने के लिए चक्रा थेरेपी को यूज करते हैं। ये पतंजलि योगा में कुंडलिनी जागृत करना, चक्रास को बैलेंस करना, ये योगा धर्म में, योगा सिस्टम में अपने को प्रैक्टिस में था। तो आप लोगों को ये सब कुछ मालूम है। जो लोग ये कुंडलिनी योगा चक्रास जिनको मालूम है, उनको तो मैं जो बता रहा हूँ वो तो छोटा सब्जेक्ट है, उन लोगों को मेरे से ज्यादा मालूम होगा। मगर आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर से दे के ही मैं सामने जाऊंगा चक्रास के बारे में हेल्प करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। वो छोटा क्वेश्चन क्या है कि चक्रास को हीलिंग को क्या संबंध है, ये आप लोगों को समझना है पहली बात। क्योंकि डेफिनेटली हम लोग हीलिंग में चक्रास प्रोग्राम है, तो कई लोग हमको पूछते रहते हैं क्या रिलेशन है, हम हीलिंग में चक्रा कैसा रन कर सकते, कैसा रिलेवेंट हो जाता। क्योंकि यही चक्रास को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा मेडिटेशन, बहुत सारा योगा प्रैक्टिस ये सब चाहिए। तो हीलिंग से हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल तो एक्सप्लेन करता हूँ। अभी सामने आप देख रहे हैं मूलाधार चक्रा दिखा रहे, उसका मूल मंत्र हो गया लम। तो जैसे अपने बॉडी में हर डिपार्टमेंट के लिए एक फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन है, एनर्जी है, इसी तरीके से अपने बॉडी में जो मूलाधार चक्र है उसको भी एक एनर्जी है। तो हमारे क्वांटम सेंसर, जो छोटा सा क्वांटम सेंसर हीली है, टाइम वेवर है, इससे हम लोग क्या करें, जो हम लोगों का मूलाधार चक्र का एनर्जीज को हम लोग रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करके उसके ऊपर बैलेंस करने का, वो इम्बैलेंस होने से क्या क्या फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस आता, उसके ऊपर रिसर्च करके हम लोग आज क्या करें, मूलाधार चक्र का बैलेंसिंग का एक फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करें। तो अपने क्वांटम सेंसर क्या करेगा, रियल टाइम में अपने बॉडी के ऊपर एनालाइज करेगा पहले, फिर बाद में जो मूलाधार चक्र एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसमें जो हार्मोनाइज माने जो एनर्जी इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करते हुए वाइब्रेट करेगा अपने बॉडी का एनर्जी। इस तरीके से अपने बॉडी में जो चक्रा थेरेपी में, जैसे कि ये चक्रा प्रैक्टिस करने के लिए जो वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, योगा द्वारा, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हीली की यूज करके हमारा जो मूलाधार चक्र है ना उसको हम लोग वाइब्रेट करते हैं। इस तरीके से वाइब्रेट करने से मूलाधार चक्र हार्मोनाइज होके, माने उसका एनर्जी बैलेंस होके हम लोगों को जो फायदा मिलना है वो हम फायदा ले सकते हैं।
एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ से दिल्ली जाना है तो फ्लाइट में भी जा सकते हैं, नहीं तो ट्रेन में भी जा सकते हैं, नहीं तो बस से जा सकते हैं। तो बस से जाने में, ट्रेन में जाने में जो टाइम लगता था, फ्लाइट से हम क्या करें, टाइम जोन को अचीव करें। इसी तरीके से आप जो लोग ये मेडिटेशन से जब मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हो, मेडिटेशन में मूलाधार चक्र एक्टिवेट फिजिकल लेवल में करते हुए अगर आप एडिशनली हीली का फ्रीक्वेंसी यूज करते हो तो आपको लेस टाइम में मोर अचीवमेंट मिलने का चांसेस हम लोग पाए। क्योंकि हम जब ये फ्रीक्वेंसीज को रेगुलरली यूज करते थे तो वाइब्रेशन में चक्रास के ऊपर हम लोगों को ऐसा फायदा मिला है। और कई लोग, नॉट ओनली हम लोग, कई लोग मेरे क्लाइंट्स और मेरे फ्रेंड सर्कल में और कोई योगा सिस्टम में जो भी है उन लोगों को यही अनुभव मिला है। तो ये अनुभव को आज हम आपके सामने, जो जो चक्रास से अपने को बेनिफिट आता है फिजिकल लेवल में और मेंटल लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में, उसके लिए हम लोग आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हीली से हम लोग क्या करते हैं, टाइम जोन माने जितना टाइम हम प्रैक्टिकली फिजिकली लगाते हैं उनको कम करते हुए ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज करके अचीव कर सकते हैं। तो अभी लास्ट सेशन में हम मूलाधार चक्र, बाकी चक्र के बारे में बात कर रहे थे ऐसे ही। तो ये बार अभी नेक्स्ट चक्रास के लिए रह जाएंगे। थैंक यू। ओवर टू वंदना। क्विकली आई विल समराइज। दोस्तों, हमने पहला चक्र हमारा देखा रूट चक्र, जिसका नाम है मूलाधार चक्र। जैसे कि ये आधार स्तंभ है हमारा, बेस ऑफ स्पाइन में लोकेटेड है, लम इसका मंत्र है। और ये जो चक्र है वो हमें स्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है। यानी अगर कोई पेड़ ऐसा है जिसके मूल ही नहीं है तो वो पेड़ खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही हमारे पृथ्वी लोक पे जीवन के लिए ये चक्र है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हमें बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, चाहे हमें शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, या चाहे हमें एक सिक्योर स्टेबिलिटी चाहिए, ग्राउंडिंग चाहिए, ये सबके लिए मूलाधार चक्र की जरूरत है। दूसरा चक्र हमने किया था, वो है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र यानी कि इसका नाम ही बताता है कि ये स्व में अधिष्ठित है, यानी स्व में संपूर्ण है। तो ये जो चक्र है, ये ये जो चक्र है, इसका बीज मंत्र वम है। और एलिमेंट इन्वॉल्व है वो वाटर एलिमेंट है। जैसा कि रूट चक्र में पृथ्वी तत्व की बात है, यहाँ पे वाटर एलिमेंट है। और ये जो चक्र है ये मुख्यतः हमारी क्रिएटिविटी और हमारी पैशन के लिए जिम्मेदार है। तो जो भी हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी है, रिलेशनशिप से, इमोशन से, इमोशनल बैलेंस से, वो सब के लिए स्वादिष्टान चक्र का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। और ये चक्र के हमने देखा है कि अगर बैलेंस है तो आप हमारे जो भी अलग अलग आनंद हम लेते हैं लाइफ में, जैसे कि फूड हो, वाटर हो, कोई म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, एनी फाइन आर्ट्स, म्यूजिक हो, हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, जिंदगी में जो भी प्लेजर्स है वो ये चक्र के कारण है। तो ऐसा ये चक्र है हमारा। और हमने तीसरा चक्र किया था मणिपुरा चक्र। ये इसका लोकेशन है वो नाभि से 3 उंगल ऊपर है, ये स्थित है सेंटर में। और जैसे कि नाम बताता है मणिपुरा, मणि यानी रत्न, जेम्स, पूरा यानी स्थान, निवास। तो यहाँ पे जैसे कि सोलर प्लेक्सिस बोलते हैं हम, सब मेन जो हमारे बॉडी की जो मुख्य नर्व्स प्लेक्सिस है, इसका यहाँ पे एक समूह, यहाँ पे संगम होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी लाइफ में जो भी हमें करेज चाहिए, जो भी हमें साहस चाहिए, और जो भी हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो मेंटल बॉडी को ये गवर्न करता है मणिपुरा चक्र। ये चक्र अगर आपका बैलेंस है तो हम देखते हैं कि आप कैरियर में, आपके बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं, और आप लाइफ में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। और इवन फिजिकल हेल्थ वाइज भी देखें तो अगर जिसका पेट बिगड़ा उसका सब बिगड़ा।
तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। और मेरे यहाँ पे भी थेरेपी सेंटर में जब भी डायबिटीज के लोग आते हैं, डायबिटीज है, बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं, एंजाइटी के पेशेंट्स आते हैं, बहुत बार जैसे कि हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसीज या ऑटो इम्यून डिसीज है, इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स है, जहाँ पे कोई एलर्जीज है या जहाँ पे कोई नेगेटिव इमोशन के कारण बीमारी पनपती है, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, डिवोडेनल अल्सर हो गया, बहुत बार एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्ट डिसऑर्डर्स में भी होते हैं। तो वहाँ पे मणिपुरा चक्र का एक अहम भूमिका है, रोल है। और वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव हीली। क्योंकि दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगी, और एक जानकारी मैं आज देना चाहूंगी आप लोगों को कि जैसे कि आपको मतलब प्रश्न होता होगा कि इतना जरूरी क्यों है चक्रा हीलिंग। तो मैं कुछ क्वेश्चंस रखती हूँ आपके सामने। अगर यदि आप ये समस्या से पीड़ित है तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए चक्रा हीलिंग बहुत ही जरूरत है। तो यदि ऐसी कुछ बीमारी है कि आप बार बार आपका कोई फिजिकल ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है, या कोई बीमारी है वो बार बार आपको सता रही है, जैसे कि चेंज ऑफ सीजन में बहुत बार कोल्ड कफ होती है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, कोई ऐसी बीमारी है वो कायम स्वरूप से है और वो जा ही नहीं रही है, दवाई लेके उपचार करने के बाद भी ऐसा है कि अगर आप अपनी इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी फियर, एंगर, फियर, एंगर, सैडनेस, ये जो मुख्य नेगेटिव इमोशंस है वो यदि बार बार आपको सता रही है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज है, यदि आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, और यदि आप आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का पर्पस मुझे मालूम नहीं है, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, आपको अपने बिजनेस में फाइनेंशियल सक्सेस के लिए भी इश्यूज आ रहे हैं, अगर ऐसी कुछ समस्या दोस्तों आपको सता रही है, तो यकीन मानिए कि आपको चक्रा हीलिंग का बहुत ही जरूरत है। और जैसे कि मैं बता दूं कि चक्रा हीलिंग की बहुत सारी पद्धतियां हैं हमारे आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथ में। तो जैसे कि कुछ एसेंशियल फूड्स है, फूड आइटम्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो उसके उपयोग से, सेवन से भी आप चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। कुछ हर्ब्स है, फिर कुछ ऐसी म्यूजिक थेरेपी है, कुछ बीज मंत्रा है, कुछ मंत्रा चैंटिंग है, और कुछ नेचुरल हीलिंग तरीके भी रहते हैं, और मेडिटेशन और प्रेयर, ये दोनों जो मेन की है चक्रा हीलिंग की। लेकिन लोगों को जो 6 महीने 1 साल के बाद में चक्रा बैलेंस होता है, आप सोचिए दोस्तों कि हमारी हीली चक्रा फ्रीक्वेंसी से, ऑरा स्कैन से हमने पाया है कि आप ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आप पूर्णतः स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे चक्रा फ्रीक्वेंसी से। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारे चौथा चक्र से। फर्स्ट चक्र में हमने देखा कि हमें लाइफ मिली, हमने जन्म लिया, माँ के पेट गर्भ से बाहर आए, फिर हमने हमारी आइडेंटिटी फील की, हमने हमारी आइडेंटिटी डेवलप की। अब आगे की बात आते हैं कि मैं तो आ गया, सोलर चक्र आ गया। अब अनाहत चक्र में हम देखेंगे कि मैं का विस्तार कैसे होता है। तो ये जो हमारा जो चक्र है अनाहत, ये नाम ही बताता है कि ये चक्र अगर आपका जागृत है तो आप किसी को भी आहत कर ही नहीं सकते, आप किसी को भी आघात शोक दे ही नहीं सकते। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे संत लोगों के एग्जाम्पल्स है, जैसे कि महावीर स्वामी थे, बुद्ध थे, भगवान तथागत बुद्ध थे, कि जिनमें इतनी करुणा और अहिंसा भरी हुई थी कि उनका हार्ट चक्र मतलब इट वाज फुल ग्रोइंग। तो ये अनाहत चक्र ऐसा हमारा चक्र है, इसका रंग हरा है, और आप प्रकृति में कहीं भी जाए तो आप पाएंगे कि हार्ट चक्र इसकी मौजूदगी आप हर कहीं पा सकते हैं। तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारा आयुर्वेदा भी यही चक्र के ऊपर बेस है। तो ये चक्र का जो स्पेक्ट्रम है, कलर स्पेक्ट्रम, वो है ग्रीन कलर स्पेक्ट्रम है। और ये जो ग्रीन कलर है, ये एक प्यूरिफिकेशन का, एक हीलिंग का, और बहुत ही एक सूदिंग कलर है। तो हम हॉस्पिटल में भी देखते हैं हरा रंग यूज किया जाता है।
इसका जो लोकेशन है वो है छाती के मध्य भाग में है, हार्ट सेंटर में, यहाँ पे। तो ये जो चक्र है दोस्तों, इसका जो तत्व है, एलिमेंट है, मुख्य तत्व, वो है एयर, हवा। अब हवा का झोंका जो है वो कैसे महसूस होता है? हवा जब गुजरती है तो उसकी शीतलता या गर्मी हम महसूस करते हैं स्किन के द्वारा, हमारे शरीर के ऊपर। तो इसका जो सेंस ऑर्गन है वो भी है टच, स्पर्श। और स्पर्श करने की जरूरत क्या है? तो हमारे हाथ। सो ये हाथों से हम फूलों की नरमाहट देख सकते हैं, हम वी कैन फील, वी कैन टच ईच अदर, अवर पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, अवर लव्ड वंस। सो एक्शंस ऑफ हैंड्स मेन है यहाँ पे। और मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों आप सोचेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड यानी क्या? ग्लैंड यानी ग्रंथि, एंडोक्राइन यानी कि ये ग्रंथि के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेशन होते हैं जो हमारी बॉडी की मुख्य जो फंक्शन है, कामगिरी है, उसके लिए उपयोगी होते हैं। और कुछ मैसेजेस वो लेके जाते हैं ब्लड में, ब्लड से अपने बॉडी तक। तो इसको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि कुछ दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं। यहाँ पे मुख्य ग्रंथि है थाइमस। थाइमस ग्रंथि जो है वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, यानी बाल्य अवस्था से किशोरावस्था तक ये ग्रंथि सक्रिय रहती है। और ये जो ग्रंथि है वो हमारे लिम्फोसाइट्स यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको एक शक्ति प्रदान करती है। टी सेल्स है उसका प्रोडक्शन अच्छे से करती है। और हम आगे देखें कि ये जो चक्र है, जैसे कि बताया, इसका जो लोकेशन है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट है। तो हार्ट, लंग्स, रिब केज, चेस्ट, डायाफ्राम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और आर्म्स एंड हैंड्स, ये इतने सारे ऑर्गेन्स और एरिया को ये कवर करता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हम बारिश आती है और हर कहीं हरियाली दिखती है तो हमें ऐसा लगता है कुछ तो एक्सपांड हो रहा है, हमारे अंदर कुछ तो विकसित हो रहा है। तो ये चक्र का गुणधर्म है विकसित होना, फैलना। तो और दूसरा मैंने बताया कि एयर तत्व है, वायु तत्व है। तो एक तो मैंने बताया कि स्पर्श है, दूसरा जब हम सांस लेते हैं, हमारी सांसों की आवागमन है, ब्रीदिंग है, इससे इसका ये चक्रा से रिलेटेड है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम एंजाइटी में रहते हैं या फिर कोई समस्या घिरती है तो हमारी सांसें या तो बहुत ही शांत हो जाती है या फिर बहुत ही जल्दी जल्दी चलती है, फास्ट हो जाती है। तो जो भी ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स है वो भी इसमें कवर होते हैं। ये चक्रा की जो मुख्य इमोशन है, ये चक्रा को चार्ज करने वाली जो इमोशन है वो है जॉय, आनंद। और मैं बताऊंगी कि दिस चक्रा इज ऑल अबाउट कनेक्शन। So few points are there about this chakra. So this chakra is about love. This chakra is about connection. This chakra is about communication, about expansion, about touch, about feelings, about trust, and to release your emotions. For forgiveness also this chakra is used. So this is the positive emotions which will charge this chakra. And at the same time, if you are in a grief or if you are in a sadness, like बहुत बार ऐसा होता है कि मैं इसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा, या ये व्यक्ति चले जाने से, हार्ट ब्रेक से इतना दुख हो रहा है कि हम पास्ट में अटक के रह गए, हम प्रेजेंट में नहीं आ रहे हैं, और हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं, और हमें लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो ये जो है, ये इस टाइप की नेगेटिव एनर्जी ये चक्रा को दूषित करती है, करप्ट करती है। तो आइए डॉक्टर रघु से इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते। ओवर टू डॉक्टर रघु। या तो अब तक हम लोग अनाथ चक्र के बारे में कैसा काम करता है सब डॉक्टर वंदना जी से आप सुने। अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से आप बताना चाह रहा हूँ कि ये थाइमस जो ग्लैंड है, इट इज रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्कुलेशन,
माने अपने बॉडी में जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे कि हम वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो जो हम हमारे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होना है ना, वो सप्लाई का डिपार्टमेंट हेड है वो अपना थाइमस ग्लैंड। एंड थाइमस ग्लैंड जो है ये रिलेवेंट करता हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को, ये हेडक्वार्टर बोलते हैं हम लोग। ऑर्गन वाइज आप देखे तो ऑर्गन वाइज हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेशन का पंपिंग ऑफ द ब्लड बोलते हैं, उसका ग्लैंड क्या है? थाइमस ग्लैंड। तो ये थाइमस ग्लैंड क्या करता है? गवर्निंग ऑफ टोटल हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करता है। ये आपको फिजिकल लेवल में आपको समझना है। जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपको सर्कुलेशन में जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि थोड़े लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, जैसे कि उनका स्टैग्नेटेड लाइफ है, उन लोगों के लिए ये थैलेमस रिलेटेड हार्ट चक्र रेगुलर यूज करने से फिजिकल लेवल में उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मेंटल लेवल में वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? ये हार्ट चक्र इज अ फीलिंग ऑफ लव। आप लोगों को सबको मालूम है हार्ट सिंबलाइज करता है कि लव का, तो लव माने हार्ट चक्र। या अभी हम टच के बारे में बता रहे थे, ये जो चक्रा का जो फीलिंग है ना, टच। तो आपको किसको हीलिंग करना है, नहीं तो आप बड़े एक सेंट के पास गए तो वो क्या करे, आपको हाथ से ब्लेसिंग करे। तो क्यों ब्लेसिंग? वो ब्लेसिंग क्या करता है, वो वाइब्रेशन है ना, आपका हार्ट चक्रा को टच करता है। तो वो ब्लेसिंग्स हार्ट चक्रा को जब टच करता है, ब्लेसिंग्स आपको आते हैं, एनर्जीज जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, वो आपके हार्ट चक्रा को एनर्जाइज करते हैं। इसलिए देखिए, जो जो मेडिटेटर रहते हैं, नहीं तो गुरु लोग रहते, प्रेयर्स करते रहते, उनके पास जाके आप हाथ जोड़ के उनके पास बैठे तो वो लोग क्या करते हैं, आपको आशीर्वाद देते, दो हाथ से, एक हाथ से। जब आशीर्वाद दिए तो उनका जो साधना शक्ति है, उनका जो वाइब्रेशन ऑफ थॉट है, वो आपका हार्ट चक्रा पे काम करके वो टच फीलिंग से आपका हार्ट चक्रा को बैलेंस करता है। तो देखिए कितना साइंस है ये चक्रास के विषय में। तो इस तरीके से ये टच फीलिंग थैलेमस जो ग्लैंड को, हार्ट चक्र को एनर्जाइज करता है। और अभी तक हम बताए थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ये इम्यूनिटी पे भी काम करता है, क्योंकि एयर इज इसका एलिमेंट है। इम्यूनिटी माने रेसिस्टेंस पावर बोलते हैं। जैसे जो बच्चों में देखते जल्दी थक जाना, थकावट होना, ओल्ड एज में भी थकावट होना, उन लोगों के लिए भी हार्ट चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये अभी तक जाने थे अपन गुड सेल्स एंड बैड सेल्स, टी हेल्पर सेल्स बोलते हैं, अच्छा सेल्स, अभी डॉक्टर वंदना जी ने बताए थे। उसी तरीके से एनके सेल्स तो बैड सेल्स बोलते हैं हम लोग। तो अपनी बॉडी में टी हेल्पर सेल्स, गुड सेल्स और बैड सेल के बीच में हर दिन, हर सेकंड फाइटिंग है। तो अच्छा सेल्स और बुरे सेल के बीच में फाइटिंग अपना बॉडी का केमिस्ट्री है, अपने बॉडी का सिस्टम है। तो हम लोग क्या करना है, कौन सा सेल्स को हम सपोर्ट करना है? बैड सेल्स को, फ्री रेडिकल सेल्स को अपने बॉडी में हटाना है, राइट। और गुड सेल्स को हम लोग सपोर्ट करना है। तो गुड सेल्स को सपोर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलरली हार्ट चक्रा वंडरफुल काम करेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन बोलते हैं क्योर। तो इस तरीके से अगर आपके घर में कोई लॉन्ग टर्म बीमारियां रिलेवेंटली आ रहे, खानदानी आ रहे, उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए अपना इंडियन सिस्टम में हार्ट चक्रा के ऊपर काम करो। माने अपना बॉडी का टी हेल्पर सेल्स, अच्छा सेल्स का स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। खानदानी फॉर एग्जांपल मम्मी डैडी को डायबिटीज है, अपने को आने का चांस है, तो प्रिवेंशन के लिए अगर आप टी हेल्पर सेल्स को, माने गुड सेल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए हार्ट चक्र को रन कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ओवर टू वंदना। यस, थैंक यू डॉक्टर रघु। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि ये जो अनाहत चक्र है, ये जो अनाहत चक्र है, इसे करप्ट करने वाले, मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि आपका अनाहत चक्र है, वो बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है। तो यदि आप ऐसा महसूस करते हैं दोस्तों कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप कुछ लोगों को माफ नहीं कर पा रहे, पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई है जिससे आप फ्री नहीं हो पा रहे, और आप भीतर बहुत ही घुटन और नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, और अगर आपके अंदर
किसी को तकलीफ में देख के, किसी को कुछ सफरिंग में देख के अगर आपको उन्हें हेल्प करने का या कुछ सपोर्ट देने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको ये मतलब जानना जरूरी है कि आपका जो चक्रा है वो नेगेटिव एनर्जी में वर्क कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, एज ए डॉक्टर हमने देखा है कि हमारे पास अलग अलग प्रॉब्लम लेके पेशेंट्स आते हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल का बीमारी है, किसी को हार्ट ब्लॉकेजेस है, किसी को हार्ट डिसीज है, और दूसरी भी बहुत सारी जैसे वेरिकोज वेन समस्याएं हैं, और दूसरे लेडीज इश्यूज भी रहते हैं। तो ये जो चक्र है अगर आपका नेगेटिव है तो आप पाएंगे कि आपको हेल्थ समस्या है वो बार बार रहेगी, वो जल्दी से सुलझेगी नहीं। और अगर ये जो चक्र जरूरत से ज्यादा अधिक अगर एक्टिव है, यानी कि एक्सेसिव है, तो आप पाएंगे कि कभी कभी होता है ना ऐसा कि मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा, यानी ओवर लव, ओवर पॉजिटिवनेस। जैसे अभी जो रिलीजन में हम है, जो हमारा फैमिली है, तो हर एक को लगता है मेरा फैमिली मेरा रिलीजन अच्छा है, लेकिन अगर वो एक कट्टरता बन जाए, एक रिजिडिटी आ जाए, ओवर पॉजिटिव आ जाए रिलीजन के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो ये खतरनाक चीज होती है। और ये जो इमोशंस है ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को, सिस्टम को भी करप्ट करती है। तो ये दोनों पहलू हमने देखे हार्ट चक्रा के। अब आप कैसे जानेंगे कि आपका चक्रा बैलेंस है? तो कुछ निशानियां हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका हार्ट चक्र है वो नॉर्मल है, बैलेंस है। तो यदि आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप में विश्वास करते हैं, आप रिश्तों को संजोए रखने में मानते हैं, यू टेक केयर ऑफ योर रिलेशंस, एंड यू इफ यू लाइक टू care, nurture your family, your plants, your children, your atmosphere. If you are concerned about Mother Earth environment, environmental issues, and if you are concerned with your spirituality growth, your community growth, so definitely you believe, friends, that you are in a love frequency, and your heart chakra is balanced. Also, it's very forgiveness is a very important tool for to maintain this chakra. Forgiveness and gratitude, thank you, these two things are necessary for this chakra, so that you can expand yourself, you can see things beyond, and you can create one type of love and harmony in your life, in your relationships. As we have known, we have seen the deficiency energy also, balance energy also. So usually disorders which are covered by this heart chakra are majorly related with the circulation, blood, then lungs, respiratory system, and upper part of body like arms and hands and shoulders part is also covered. I like to point out one more thing about this heart chakra. Usually, according to the nature, Prakriti of Purush, Jains people, uh, our number 1 chakra, number 3 chakra, and number 5 chakra, they are more active, usually in males. And number 2, number 4, and number 6 chakra, they are more active in females. So females, as they give birth to child and they care and nurture the family, look after the family, their Swadhisthana chakra is sometimes balanced, sometimes overactive. And also this heart chakra, being a mother, sometimes mothers are usually very anxious about their child's health issues, about child's studies, about child's development, growth, and because of that they may face certain issues later on in life in a form of hormonal imbalance, anxiety disorders, sleepless nights, and even heart diseases. We are so fortunate that this monsoon season is also, it's a time to open your heart chakra. So these are the things. Dr. Raghu, you will I will like to hear something clinical from your side also. Sure. Clinical part.
सो अनाहता चक्रा जो हम अब बात कर रहे हैं हार्ट के लिए, ये इसमें मैं 3 लेवल में फिर एक बार आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। फिजिकल लेवल में जो भी हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया और आस्थमा होगा। आस्थमा वालों को तो सीजनल इफेक्ट्स रहते रहते, जैसे कि क्लाउड्स आने में उनको दम लगना है, घुटन होना है, तो सर्दी होने के चांसेस होना है। और आस्थमा वालों को नॉट ओनली दैट डस्ट में गए, नहीं तो कंजेक्शन हो गया, क्लोज्ड रूम में है, उनको ब्रेथलेसनेस होते रहता। उन लोगों के लिए जिनका बार बार बीमार गिरते रहते, माने बच्चों में भी मैं देखता हूँ मेरे क्लिनिकल इसमें कि इवन 20 इयर्स के बाद भी, माने अडल्ट एज एंटर होने के बाद भी उनमें इम्यूनिटी कम होने से बार बार बीमार गिरने के चांस रहते हैं ऐसे लोगों के लिए। और वेरी इंपॉर्टेंट विमेन में और मेन में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स कुछ करने की दम, उन्हें ताकत, विल पावर बोलते हैं। तो उसके लिए इस तरीके से ये मेंटल लेवल में जो है कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ाने के लिए, और आपका हार्ट, माने बोलते रहते हैं ना हार्ट स्ट्रांग रहना चाहिए। माने क्या है, अब हम स्ट्रांग है बोलते अपना हार्ट स्ट्रांग है, अपना हार्ट स्ट्रांग है तो हम स्ट्रांग है। सो स्ट्रांगनेस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए आप ये पर्टिकुलर फिजिकल लेवल में और मेंटल लेवल में आप एक चक्र को यूज करते हैं। और स्पिरिचुअल लेवल में वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, हार्ट ओपनिंग बोलते हैं। जिनका हार्ट ओपन है वो सच बोलते हैं, दिल में एक रखते हैं और बाहर कुछ बोलते हैं। ये आप सुने होंगे। तो दिल में एक रखना, बाहर कुछ बोलना, और उससे क्या होता है, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेस होते हैं। और थोड़े लोग झूठ बोलते रहते, छोटे छोटे विषय में झूठ बोलते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट चक्र है हार्ट चक्र। तो दिल में एक नहीं रखना है, बाहर एक नहीं दिखाना है। तो हमको कैसा रहना है, आउट ब्लास्टिंग बोल्डेड रहना है। तो उसके लिए हार्ट चक्र वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से और मैं कई लोगों से सुना है, डोंट लोड योर हार्ट चक्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट। दिल से मत लीजिए, दिमाग से लीजिए। सुने होंगे आप लोग, कुछ भी है दिमाग से लीजिए और दिमाग से छोड़ दिए सोच के, दिल में मत रखिए और दिल से लोड मत करिए। दिल से लोड करने से क्या होगा, आपका हार्ट चक्र वीक हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आपको इम्बैलेंस हो गए तो आपका, आपके विल पावर आपको नहीं रहेगा, आपके आपके खुद के ऊपर आपको प्रेम नहीं रहेगा, और आपके रिलेशन से आप दूर हट जाएंगे। और आपको त्याग बुद्धि जो रहता है ना वो भी कम हो जाता है। तो गिविंग अप भी नहीं रहेगा, तो पकड़ के रहना, वो चीजों पे ग्रिप रहना। ऐसे हार्ट चक्र वीक होने से ये सब, इवन डर भी लगना, ये सब हार्ट चक्र ही करता है। तो फिजिकल लेवल में, मेंटल लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में, 3 लेवल में हार्ट चक्र अपने को ऐसा काम करेगा। और जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है आपको सामने हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बोलते हो आप, हार्ट चक्र आप फिजिकल लेवल में हीली के साथ कोई भी प्रोग्राम यूज करते हुए उसके साथ जोड़ सकते हो चक्रा प्रोग्राम। एंड हार्ट चक्र का प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मॉर्निंग 11 to 1, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग 11 to 1। क्योंकि मेरिडियन चैनल्स के हिसाब से, चाइनीज मेरिडियन चैनल्स के हिसाब से अपने बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक के टाइमिंग, हार्ट टाइमिंग क्या है, 11 to 1। सो आप लोग हो सके तो ये हार्ट चक्रा का जो चक्रा आप प्रोग्राम रन करना है तो मॉर्निंग 11 to 1 फर्स्ट एडवाइजेबल है। एंड सेकेंड इफ नॉट 1 to 3, क्योंकि हार्ट चक्रा 11 to 1 रहेगा उसका एनर्जी चैनल। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन चक्रा, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन आएगा। क्योंकि ये मेरिडियन आर्ट में हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, इन एंड यान ऑर्गन्स। तो इसलिए आप क्या करना है, 11 to 1 मैक्सिमम फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 1 to 3, इन टाइम में आप हार्ट चक्र को रन करिए। और दूसरी बात क्या है, चाइनीज प्रिंसिपल के हिसाब से हार्ट का टाइम माने मॉर्निंग 11 to 1 जो मेरिडियन चैनल्स का टाइम है, वो टाइम इज टाइम ऑफ डिसीशंस। अगर आपको कोई लाइफ का डिसीजन लेना है, किसके साथ पार्टनरशिप करना है, आपको कुछ बिजनेस करना है, आपको कुछ बाहर जाके काम करना है, आपको तरक्की लेना है लाइफ में,
तो फिर बिजनेस में किसको आपको इंट्रोड्यूस करना है, इवन हीली के बारे में बताना है, तो बेस्ट टाइम क्या है? 11 to 1, मोर बिजनेस टाइम बोलते हैं हम, क्योंकि 11 to 1 इज द हार्ट इज द वन विच विल ओपन। ऐसा बोलना चाहता कि चाइनीज लोग, चाइनीज प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा बोलते कि जो कोई 11 to 1, उनका हार्ट कितना भी खराब रहे दो सोच, उनका हार्ट तो ओपन रहेगा, ये मानते चाइनीज। इसलिए 11 to 1 is the best time to accelerate or anatha chakra. So thank you. Thank you, Dr. Raghu, for this additional information. So let us move ahead. We come to the chakra number 5, that is a Vishuddhi chakra. Vishuddhi, the name itself suggests it's a Sanskrit word. Shuddhi means purity, and Vishuddhi, stands for Vishesh. So this Vishuddhi chakra, it is also known as throat chakra. It is located at the center of the throat, and under the skin. It is located, and its color is a blue color, and it represents the space element, basically a sky element. And this Vishuddhi chakra seed mantra is hum. Usually we see that this chakra is all about effective communication, about expressing yourself, about your integrity, about your vision, about your leadership, about your honesty. So this chakra is very, very effective. People who are very honest, very dedicated, who are really a pioneers. So we have found that their Vishuddhi chakra is active, and because of that, they can take things forward ahead in society on a very grand level. Usually, we see that 384 hertz frequency is noted about this chakra, and this element involved is a space, as I said. Also light is, some people see light, roshni, when they experience this chakra. So light is also element. The endocrine gland active is a thyroid. Thyroid gland is basically, friends, is a gland which secretes hormones, which controls your body's metabolism. So whatever you eat and drink, how that your body is utilizing energy inside, that depends on this thyroid hormone production and effectiveness. It's a butterfly shaped gland located in the throat, and we have parathyroid gland also just above the thyroid. So this is the about thyroid gland information. Sense is a sound over here. So sound is naturally, I am speaking to you. So my speech, my voice, vibration is a sense organ here. Action is speaking. And I can say ki certain things are there which you need to pay attention if you want to enhance your Vishuddhi chakra. Usually what happens that in a day-to-day life, sometimes some people have habit of telling lies without any reason. For whatever reason, they just go on telling lies. They are never honest. And some people, they are so shy and so indecisive. They can't make their decision. They can't speak up for themselves. And sometimes it happens that it takes time to express their true inner feelings. So nowadays we are seeing that thyroid problem is increasing in our community, especially with ladies, middle-aged ladies. It's becoming very, very common. It's like every now and then, every in 10 10 ladies, we will see that at least 2 to 4 are affected with this thyroid issues. So basic reason is not aware about your expression, not aware about your reality, and not aware about the honesty part.
So if you want to be if you want to live life creatively and fully happily, so your Vishuddhi chakra should be normal and active. So this is a thing. Related physical organs, as we all know, that covers the throat. So throat, trachea, esophagus, this nape of the neck is also covered in this. Vocal cords are covered, and shoulders part is also covered, and mouth, teeth, and gums. So this mouth, throat, this area, it covers everything. Dr. Raghu, you like to add something? यस, विशुद्ध अभी तक बता रहे थे, इसका मूल मंत्र हम, ये थ्रोट का जो चक्र थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जैसा बता रहे थे, तो मेटाबॉलिज्म तो अपना बॉडी का सिस्टम बैलेंस। तो बैलेंस कैसा होता है? जनरली बैलेंस के लिए आपको समझना है, क्योंकि हीली जब यूज करते हो तो इम्बैलेंस क्यों हुआ आपको मालूम है तो बैलेंस का मतलब मालूम होता है। जैसे हम दिन में जागना है, रात में सोना है। अगर हम रात में जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं तो अपना मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? ये क्वेश्चन आप सोचना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दिन में हमको खाना है, रात में नहीं खाना है। दिन कब होता है? मॉर्निंग 6 से लेके इवनिंग 6 दिन होता है। और मॉर्निंग कब होता है? मॉर्निंग 6 से इवनिंग 6 होता है। तो दिन में हम लोग खाना खाना है, रात में खाना नहीं खाना है। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया मैं। डे में हमको जागना है, रात में सोना है। इसी तरह डे में हमको खाना है, रात में नहीं खाना है। मगर आजकल ऐसा हो रहा क्या है? आप सोचिए। नहीं होने से क्या हुआ? अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब हो गया तो किसके ऊपर लोड आएगा? मेटाबॉलिक ग्लैंड के ऊपर लोड आएगा। अपने बॉडी में मेटाबॉलिक ग्लैंड क्या है? थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, सब लोग थायराइड के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, थायराइड के सफरर्स हो रहे हैं आजकल दुनिया पूरा, आपको मालूम हो गया। मगर क्वेश्चन क्या है, ये थायराइड का प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि अपना मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिस्टर्ब करें। ये फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है? हार्मोन इम्बैलेंस। अपने बॉडी में जैसे मेन में थोड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन है, विमेन में भी थोड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो हार्मोन्स चेंजेस होने से भी अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। जब हार्मोन चेंजेस होकर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होकर थायराइड सफरिंग में है, तो हम थायराइड को ट्रीटमेंट कर रहे हैं मगर मेटाबॉलिज्म पे कोई भी काम नहीं कर रहे। तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कौन सा भी मेडिसिन लीजिए, कौन सा भी थेरेपी करिए, आप कौन सा थेरेपी में, इवन एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, कोई भी थेरेपी करिए, इवन इंक्लूडिंग हीली भी यूज करिए, मगर उसके साथ आपको क्या करना है? आपका मेटाबॉलिक फैक्टर को आपको खुद करेक्शन करना है। क्योंकि मैं मेटाबॉलिक फैक्टर को मैं डिस्टर्ब करता हूँ और रोज थ्रोट चक्र रन करता हूँ और थायराइड मेरा काम करना, ऐसा होता है क्या? ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो समझिए, ट्राई टू कंट्रोल योर मेटाबॉलिज्म एंड वर्क ऑन योर मेटाबॉलिज्म। रात में मत खाइए, दिन में खाइए। रात में सोइए, दिन में मत सोइए। ये वेरी बेसिक सिस्टम है। और दूसरा, हार्मोन से जो बना है उसके ऊपर भी हम ये थायराइड का विशुद्ध चक्र करके हम लोग इसको विशुद्ध चक्र को कंट्रोल कर सकते हैं। और विशुद्ध चक्र का और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? मेंटल लेवल में हम ना अपना जो बात बोलते हैं, तो आप सुने होंगे, थोड़े लोगों का बात सुने तो अच्छा लगता, थोड़े लोग बात सुने तो सुना ही अच्छा नहीं दिखता। उनसे बात करना भी अपने को माने वी डोंट फील दैट हैप्पी टू टॉक टू देम, वी अवॉइड देम। तो ये जो पर्टिकुलरली ये थ्रोट चक्र है, विशुद्ध चक्र, जिसका बात नहीं जम रहा है दुनिया में, जिसका बात पे वजन बोलते ना, अपने वर्ड पे वजन रहना, तो जिसके बात में वजन नहीं है उन लोग भी ये विशुद्ध चक्र को रन करना है, तो आपका वर्ड, आपका जो बात है ना, वो स्ट्रांग हो जाएगा। और उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये अपना बॉडी जो बना है 5 एलिमेंट से बना है, आप लोगों को सबको मालूम। तो लास्ट अनाहत चक्र देखे हम लोग, वो एरीज एलिमेंट था। अभी जो 5 एलिमेंट्स में लास्ट एलिमेंट को आया हम लोग, उसका नाम क्या है? स्पेस, आकाश तत्व। तो ये विशुद्ध चक्र रिप्रेजेंट करता है आकाश तत्व को 5 एलिमेंट में। तो ये आकाश तत्व मीन्स इंफिनिटी बोलते हैं। और आकाश कौन से कलर में रहता है? ब्लू कलर में रहता है। इसी तरीके से ये अपना जो विशुद्ध चक्र है ये भी ब्लू कलर में अपने को दिखता है।
तो ये विशुद्ध चक्र स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, और विशुद्ध चक्र अपने बॉडी का जो अपना जो बात है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो दिस ऑल अबाउट विशुद्ध चक्र। तो ये विशुद्ध चक्र में एनर्जी इम्बैलेंस से होने से क्या होता है अभी हम जानेंगे। वो टू डॉक्टर वंदना। यस। सो दोस्तों, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी थ्रोट चक्रा के बारे में, कि आज का जो जमाना है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज है, और हर कहीं जाते हैं तो एक बहुत ही क्वालिटी जो हमें चाहिए वो है स्मार्टनेस. So to become smart, so for whether it's a professor, teaching line, student, career, businessman, network marketing, for to enhance your smartness, you will need throat chakra help. So what is a definition or definition of smart? S is stands for specific, M is for measurable, A is for attainable, R is for realistic, and time based. So you can achieve your goal with your throat chakra definitely, and enhance your career. We have seen deficiency in excessive part. So in when your Vishuddhi chakra is corrupted, you will see there will be issues with your voice, change in the voice tone. You may have some vocal cord issues also. And if it is excessive, then sometimes we see that people are unnecessarily talking, they are doing gossiping, and they are telling all irrelevant things. So that comes mumbling, I mean talking to self. People who can't express to others their view, they start talking with self, which is abnormal. So these are all covered with the Vishuddhi chakra. How you will come to know that your Vishuddhi chakra is balanced? So when you see that, only talking is not important in any relationship or communication. So here me and Dr. Raghu are speaking, you are all silent. So we'll definitely come up with interactive session. So interaction is very, very necessary. So this throat chakra will give you sense to listen also and to speak also. So if you are very good in speaking and listening, I mean, you can listen to others also keenly, and you can speak out your words also, express also yourself. If you are speaking facts, realities, and if you are very authentic in your expressions, and if you are living life creatively, passionately, and if you are enjoying your work, that means your chakra is balanced. And even these throat chakra, you can balance this chakra also when you are connected with nature. Suppose if you are with birds, chirping of the birds, that sound is so pleasant. If you are spending some time morning or evening with the nature, you will see that your chakra gets activated. Even music and singing activity also helps. And one more very, very essential thing for this throat chakra. Previously, we used to write everything. When I was in college and school, I used to make my notes, and I was doing journaling. I was keeping diary in vacation time. I used to write poems, and I used to collect all quotations and everything. Even we used to write letters. Previously, it was there in hostel time. I used to pen down letters to my friends, and this journaling, writing also enhances your throat chakra. Not only throat chakra, other chakras also, upper chakras. So it is very, very essential. And certain yogasana also helps to maintain the this chakra. Apart from Healy, we have Healy. So Healy is, Healy has taken everything as a part, but this is just a part of a chakra. I'm just sharing with you few things I thought. And certain natural things like fruits are the natural things. Fruits, vegetables, that are the nature's gifts to us. So this Vishuddhi chakra you can keep balanced even with certain type of fruits and certain type of drinks, like coconut water is the best thing.
also apples and the blue berries and blue grapes and dragon fruit. Certain things are there which will enhance your Vishuddhi chakra. And obviously you have Healy. So if you can make a combination of Healy frequency along with this natural healing techniques and yogasana, you may get benefit better and fast, rapidly. So this was about the Vishuddhi chakra. Let us, it's already 7 o'clock, so we shall continue with. Yeah, ma'am, you can continue. Yes. So next comes the Agna chakra. नहीं, It is इसके बारे also में मैं called बात as. करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर वर्मा. Yeah. Go back to the Kiran, go back to the previous. So विशुद्ध चक्रा के लिए यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है. तो फिजिकल लेवल में आपको आप इम्पोर्टेंट आइडेंटिफाई करिए. इसमें टीथ प्रॉब्लम, आजकल बच्चों में टीथ का कैविटीज और टीथ ग्रोथ के लिए वेरी चैलेंज हो गया है. और नेक्स्ट क्या है, मजल में, जैसे कि ओल्ड एज में मजल्स में ट्विस्टिंग आना और हार्मोन इम्बैलेंस. हार्मोन इम्बैलेंस में आज मेनोपाज में हो गए, नहीं तो पीरियड्स में पीसीओडी हो गया. इन चीजों में भी आप सपोर्टिंगली हीली का ये पर्टिकुलर विशुद्ध चक्र आपको यूज कर सकते हैं. और उसके साथ यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट किडनी स्टोन्स, क्योंकि आपका जब मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो गया तो आपका बॉडी का जो इम्प्यूरिटीज माने जो बॉडी का कचरा है ना, आपका बॉडी से बॉडी एलिमिनेट करने में भी प्रॉब्लम आ जाएगा. और बॉडी मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो गया तो आपका बॉडी में टॉक्सिन बढ़ जाएंगे. सो मेटाबॉलिज्म में टॉक्सिन, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, टॉक्सिन जब बढ़ते हैं वो टॉक्सिन्स किडनी स्टोन्स बनाते हैं. तो इसलिए किडनी स्टोन्स बनते हैं. तो क्योंकि ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिन्स होने से, ऑक्सीडेशन ऑफ सॉल्ट्स होने से स्टोन्स बनते हैं. तो वैसा नहीं बनना है तो भी आपको विशुद्ध चक्र यूज करना है. ओवर ग्रोथ वाले हैं आप प्यूबिक स्टेज में, मैंने बच्चे जब वो अडल्ट एज में एंटर होते, इवन गर्ल रहने दो, बॉयज रहने दो, उनमें ओवर ग्रोथ के प्रॉब्लम्स रहते हैं. जैसे कि एकदम हाइट बढ़ जाना और शॉर्ट हो जाना, नहीं तो हैंड्स का बढ़ जाना, ऐसा थोड़े क्लिनिकल प्रॉब्लम्स देखते रहते. तो ये ओवर ग्रोथ का जो भी प्रॉब्लम्स है, इंक्लूडिंग हेयर रिलेटेड ओवर ग्रोथ की जो भी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ये पर्टिकुलरली विशुद्ध चक्र हम लोग रिकमेंड करते हैं. रियली विशुद्ध चक्र फिजिकल लेवल में आप देखें. नेक्स्ट मेंटल लेवल में मैं बता रहा हूँ, आपको वॉइस इज आपका पावर है. आज कम्युनिकेशन स्किल्स आर द वन विच विल मेक यू टू प्रूव इन योर सोसाइटी. यस, तो आपको जिसको भी कम्युनिकेशन स्किल्स में वीकनेस है, माने आप अच्छी तरीके से बोल नहीं सक रहे, आपका बात पे वजन नहीं है, तो आपको कौन सा चक्र यूज करना है, विशुद्ध चक्र यूज करना है. ये है मेंटल लेवल में. और स्पिरिचुअल लेवल में विशुद्ध चक्र का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, या जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट विद द विशुद्ध चक्र. तो बोलते हैं कि कितने बार आप कौन सा भी बात को बार बार बोलने से वो उसका बोलने का जो बात है ना उसमें पावर आता है. माने प्रेयर में पावर नहीं रहता, मंत्र में पावर नहीं रहता, उसको बोलने में, चांट करने में उसको पावर आता है. करेक्ट. वैदिक धर्म और जो स्पिरिचुअलिटी को जो लोग मानते हैं, उन लोगों को ये जो मैं बता रहा हूँ उन लोग समझते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ चांटिंग से ही आपका जो वेद है, आपका जो प्रेयर्स है, आपका जो मूल मंत्र है, उसका पावर बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आपका मूल मंत्र एक है, आपका गुरु मंत्र है, एनीथिंग, प्रेयर्स है, नहीं तो एनीथिंग, उसको क्या करना है आपको, वो उसको देखते बैठे तो कुछ नहीं आएगा, उसको साथ में रखे तो कुछ नहीं आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, वाइब्रेट करना पड़ेगा. कितने बार आप वाइब्रेट करें. थोड़े लोगों को मैं देखते रहता हूँ माला पकड़ के वाइब्रेट करते रहते, इनरली इनसाइट वो लोग कंटिन्यू उनका मूल मंत्र चलते रहते. उससे क्या हो गया, उसका पावर डबल एंड डबल हो गया. तो ये जो विशुद्ध चक्र है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. यहाँ स्पिरिचुअलिटी को अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप बोलते हैं इन योगा सिस्टम. अब तक जो आप अनाहत चक्र तक गए, ये सब फिजिकल बॉडी, मेटीरियलिस्टिक बॉडी के बारे में मालूम हुआ. जब अनाहत चक्र को आए हैं, उधर से आप आकाश तत्व को चलेंगे, आकाश तत्व से ऊपर आए तो आप क्या करते हैं, यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी को एंटर करते. तो स्पिरिचुअल जर्नी एंटर करने के लिए फर्स्ट हम लोग क्या करना है, साधना करना है, प्रैक्टिस करना है. क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, विशुद्ध को प्रैक्टिस कर रहे हैं, विशुद्ध चक्र को वाइब्रेट कर रहे हैं.
तो विशुद्ध चक्र को कौन सा आप गुरु मंत्र लेते हैं, आप मूल मंत्र लेते हैं, आप प्रेयर्स जो भी ले रहे हैं, उसको वाइब्रेट करने के लिए, एक्सेलेंट स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट विशुद्ध चक्र. एंड हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट बोलते हैं हम लोग, माने जिंदगी का हाई लेवल अचीवमेंट्स. जैसे कि आप थोड़े पॉलिटिशियंस को देखते हो, नहीं तो इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हो, उन लोग जो हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट पाए हैं, वो क्यों पाए हैं बोल तो फिजिकल एलिमेंट, जैसे कि अनाथ चक्र से वो दिलदार बनेंगे, वो बात की बात है. मगर कोई भी आप वर्ल्ड सक्सेसफुल पीपल देखे, उनका अचीवमेंट क्या है? विशुद्धा. क्योंकि उनका वर्ड्स, उनका वॉइस, उनका जो क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन, ये सब विशुद्ध चक्र से. देखिए, आपका स्पिरिचुअल जर्नी से आप पावर लिए और उसको किस में यूज कर रहे हैं? स्पिरिचुअल जर्नी का जो वाइब्रेशन है वो किस में यूज कर रहे हैं? विशुद्धा से वाइब्रेट करके आप हम फिजिकल लेवल में यूज कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए यूज कर रहे हैं, दुनिया के लिए यूज कर रहे हैं. उससे क्या हुआ? अपना अचीवमेंट्स अचीव करें. तो ये मैं शॉर्टकट बताया, मगर वैदिक धर्म में, ये वेदा में बहुत बड़ा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है. तो शॉर्टकट मैं इसको करके आपको सिंप्लीफाई कर दिया. तो आप लोग सभी याद रख लीजिए, आपका विशुद्ध चक्र जब तक स्ट्रांग है, आपका अचीवमेंट्स एंड आपका वाइब्रेशंस, आपका वर्ड्स, ये आपको क्रिएटिविटी करेगा, आपको सक्सेस दिलाएगा. यस, दिस इज ऑल अबाउट. Thank you, Dr. Raghu, for your valuable information. So let us move to ahead. So after stepping into spirituality, next chakra is Ajna chakra. So this chakra is all about Ajna, that means intuition. So it is about developing your psychic abilities, your intuitiveness, your influences and your aspirations. यानी कि महत्वाकांक्षा और आपके सपनों को साकार करने के लिए, उसे सपना में से ड्रीम्स में से रियलिटी बनाने के लिए ये ही चक्र है जो आपको मदद कर सकता है. तो ये जो चक्र है उसका लोकेशन है बिटवीन द आईब्रोज, मिडल पॉइंट ऑफ द आईब्रोज सेंटर. यही वो चीज है जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं लेडीज, और पुरुष लोग हमारे भारतीय परंपरा में हम तिलक करते हैं. तो यही वो स्थान है जहाँ पे आज्ञा चक्र हमारा एक्टिवेट होता है. तो ये जो आज्ञा चक्र है इसका रंग है रॉयल ब्लू. और जैसे कि शिव की तीसरी आंख जो बोलते हैं हम इसे स्पिरिचुअलिटी में. तो ये जो चक्र है, ये दोस्तों कब एक्टिवेट होता है? जब आप अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस, उससे आगे जब आप अपनी रियलिटी जान लेते हैं, यूनिवर्स में भी, यूनिवर्स से भी आपका कनेक्शन हो जाता है. तो ये जो आज्ञा चक्र है इसकी विशेषता ये है कि आपका कॉन्शियस माइंड और आपके इंट्यूटिव पावर्स, ये दोनों के बीच में ये ब्रिज का काम करता है. यानी कि हमारे पास दोस्तों दो ब्रेन है, लेफ्ट साइड ब्रेन, राइट साइड ब्रेन. ये दोनों को कमांड करके, दोनों को इकट्ठा चलाने का, दोनों की जो विशेषता है, यानी इट ब्रिंग्स कोहेरेंस बिटवीन द लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन. बहुत बार ऐसा होता है, कुछ चीजें दोस्तों हम डिसीजंस या कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी लाइफ में, हम इमोशनली लेते हैं डिसीजन. बहुत बार ऐसा होता है हम सिर्फ लॉजिक चलाते हैं. तो ये जो चक्र है ना, इसकी विशेषता ये है कि ये आपको लॉजिक और इमोशंस दोनों में बैलेंस करके कैसे आगे बढ़ना है वो बताता है. तो इतना पावरफुल ये चक्र है. यानी कि अगर आपको कोई सही निर्णय लेना होगा, आपको ट्रू जो विजडम हम बोलते हैं, चतुराई जो बोलते हैं, तो वो यहाँ से आती है जब आप समान रूप से चीजों को देख पाते हैं. तो इतना इम्पोर्टेंट ये थर्ड आई चक्र. ज्यादा करके हम थर्ड आई चक्र के नाम से ही इसे बोलने में यूज करते हैं. एंडोक्राइन एलिमेंट इन्वॉल्व यहाँ पे है, वो है स्पेस, आकाश तत्व ही है. और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो है पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी. पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल ग्लैंड which controls
ऑल द सिक्रीशन ऑफ द हॉर्मोन्स, एसेंशियल हॉर्मोन्स, हमारे बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इतना इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। और साथ में हमारे पास है पीनियल ग्लैंड। तो ये जो पीनियल ग्लैंड भी है, पीनियल ग्लैंड है, वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। वो मिडल ऑफ द ब्रेन में सिचुएटेड है। और ये हमारे जो, जैसे डॉक्टर रघु ने बताया ना कि रात को सोना है, दिन में उठना है, काम करना है, जागना है, तो हमारा जो ये साइकिल है जिसे सर्केडियन साइकिल बोलते हैं, स्लीप और वेकफुलनेस का, ये साइकिल को करेक्ट करने का काम पीनियल ग्लैंड करता है हमारा। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कमांडो है। तो उसे मालूम है कौन सा हॉर्मोन्स का सिक्रेशन कैसे कंट्रोल करना है। तो ये जो दोनों जो मेन एसेंशियल ग्लैंड्स है एंडोक्राइन, ये जो ग्लैंड है ये आज्ञा चक्र के टेरिटरी में आते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन है, तो ब्रेन, आईज, ईयर्स, नोज और हमारी पूरी नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इसके इन्फ्लुएंस के अंडर आती है। और आज्ञा चक्र के बारे में मैं बस ये बोलना चाहूंगी दोस्तों कि जब आप किसी चीज के बारे में अवेयर हो जाते हो और आप आगे की चीज देख पाते हैं, यानी एक है कि हम सिर्फ कोई भी चीज के दो पहलू देखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट जो तीसरा पहलू है, जो यूनिवर्स की साइड का पहलू है, जब आप उसे उसे देखने लगते हैं तो ये बोलते हैं कि हम सत्य वास्तविकता तो उपलब्ध होते हैं। तो बहुत सारी हमारे जीवन की घटनाएं और हमारी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, अनुभव है कि उसमें वो हमारे अंदर एक भ्रम पैदा करती है, वहम पैदा करती है। तो ये चक्र अगर आपका जागृत है तो आप अपने वहम से, डाउट से और फियर से और इल्यूजन से बाहर निकल सकते हैं। और ये चक्र है, ये आपको समय का, बियॉन्ड टाइम और दूसरा वास्तविकता का परिचय देता है। तो अगर ये चक्र आपका जागृत है तो आप पाएंगे कि आप बहुत ही रियलिस्टिक चीजें हैं, आपकी आपकी सोच, आपके व्यवहार, आपकी वाणी में, सब में प्रैक्टिकल बातें होगी, रियलिटी होगी। कहीं ना कहीं आप चीजों को देख के, नाप के उस हिसाब से बोल रहे हैं। और यदि अगर ये चक्र आपका करप्ट हुआ है तो आप मतलब कोई फैंटेसी देख रहे हैं, एक ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे हैं, आप वास्तविकता से वाकिफ ही नहीं है, ऐसा होता है। डॉक्टर रघु, आप कुछ बताएं आज्ञा चक्र के बारे में। ये आज्ञा चक्र बैक जाएंगे ना एक बार, बैक प्लीज। यस, ये आज्ञा चक्र है वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस। हम देखिए जो दो चक्रा से विशुद्धा और आज्ञा, ये दोनों भी स्पेस रिलेटेड, माने आकाश तत्व, माने स्पिरिचुअलिटी। जैसा मैं बता रहा था, स्पिरिचुअलिटी जर्नी में जब हम विशुद्धा से एंटर हो गए स्पेस में, उधर से अब जा रहे आज्ञा चक्र। ये आज्ञा है दुनिया का फिजिकल बॉडी को, हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल बॉडी सेल्फ इंफॉर्मेशन फील्ड, जैसे कि केवाईसी में आपको लो मालूम है आपका नाम क्या है, आपका मम्मी का नाम क्या है, डैडी का नाम क्या है, आपका रिलेशंस क्या है, सब आपका खुद का इंफॉर्मेशन फील्ड बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड योर केवाईसी। फिर बाद में होता है उसके ऊपर वी कॉल्ड एज ग्लोबल इंफॉर्मेशन फील्ड। ग्लोबल इंफॉर्मेशन फील्ड दुनिया का पूरा इंफॉर्मेशन, दुनियादारी बोलते हैं। तो ये आज्ञा चक्र और जो इसके पहले जो चला विशुद्ध चक्र, ये दोनों भी दुनियादारी चक्र बोलते हैं। सो इसमें ये दोनों चक्र आते हैं ग्लोबल इंफॉर्मेशन फील्ड। माने आपका वॉइस कैसा, आप क्या बात करते हो, इसके हिसाब से आपका दुनिया बनता है। आप जो सोचते हैं उससे आपका दुनिया बनता है। तो दुनिया बन रहा है, कौन सा दुनिया बन रहा है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन फील्ड। आप बोलते हैं कि डॉक्टर रघु सर है अच्छे, डॉक्टर रघु अच्छे है। क्यों अच्छे है? क्योंकि मैम अच्छा बात करते हैं, डॉक्टर वंदना अच्छा बात करते हैं, राम जी अच्छा बात करते हैं, या जो भी हमारे हीली फैमिली में अच्छा बात करते हैं। हीली वाले बात करने से हमको बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा जानकारी देते हैं कि अच्छा कैसा आ रहा है, क्योंकि हमारे वर्ड से आ रहा है, हम जो बात करने से आ रहा है। उसी तरीके से अपना सोच, विशुद्धा जब बात से आता है तो आज्ञा जो आता है वो अपना सोच से आता है। तो सोच कैसा रहना है? प्योर सोच बोलते हैं हम लोग, नहीं विदाउट एनी कंडीशनल सोच।
तो दिस इज अ सोच वेयर आज्ञा चक्र स्टार्ट होता है अपना सोच के ऊपर। और पिट्यूटरी ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, सब ग्लैंडों का इंपॉर्टेंट ग्लैंड। जैसे कि सुख दुख जो भी है, जैसे आप हंसते हो तो पिट्यूटरी आपको से ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, आप रोते हो तो एक हार्मोन रिलीज करता है, आप जागते हो एक हार्मोन रिलीज करता है, आप सोते हो तो एक हार्मोन रिलीज करता है। माने आपका बॉडी का जो भी कमांडिंग ऑफ सिस्टम है हार्मोन्स का, जो अभी फीलिंग का, जो आपका फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर है, वो सब मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड देखता है और उसको इंप्लीमेंट करता है पीनल। पिट्यूटरी क्या करता है? रिलीज करता है, उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? पीनल ग्लैंड। इन दोनों का कम्युनिकेशन अभी हम डॉक्टर वंदना मैं दोनों मिलके हम जुगलबंदी में हम लोग अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सही है ना? क्यों कर रहे हैं कि कहीं अगर मैं मिस हो गया तो उसको और करने के लिए डॉक्टर वंदना, और डॉक्टर वंदना कुछ तो मिस हो गया, मेरा अनुभव से उसको करेक्शन करते हैं, हम जो जुगलबंदी करते हैं। इसी तरीके से अपना पिट्यूटरी एंड पीनल ग्लैंड जुगलबंदी करते हुए अपनी जिंदगी को चलाते हैं। वो दोनों ग्लैंड का कम्युनिकेशन ही अपना फीलिंग्स, अपना काम, अपना दाम। तो ये है अपना आज्ञा चक्र। तो ये आज्ञा चक्र से अपना एक्सेस होने तो क्या होता है, इसका प्रॉब्लम में क्या होता है देखिए नेक्स्ट। या सो यदि आपका आज्ञा चक्र करप्ट है, वो कैसे पता चलेगा? कि जब आप कोई चीजों को अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पाते, यानी आपको कुछ सोचना है, आपके फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग करना है, चाहे फिर वो बिजनेस हो, कहीं ट्रैवलिंग करना हो, या आगे का कुछ आपको आपके फील्ड में कुछ आगे करना है। यदि आपके पास दोस्तों, किसके पास, हमारे पास नक्शा ही नहीं है, मैप ही नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जैसे जंगल में जाते हैं तो हमें डायरेक्शन चाहिए, ऐसे ही हमें लाइफ में भी डायरेक्शन चाहिए। तो हमारे जो भी प्लान्स है उसको सक्सेसफुल करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे मन में तो उसकी छवि चाहिए। तो ये आज्ञा चक्र, यदि ऐसा है कि आप आसानी से चीजों को भाप नहीं सकते, इंट्यूटिव पावर आपका कम है, मेमोरी इश्यूज है, और आप अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, और यदि ऐसा है कि आप सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन सपनों के लिए दौड़ते नहीं, कुछ करते नहीं, तो दोस्तों टाइम आ गया है कि आपको अपने ये चक्रा पे काम करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं रखते हैं, और नेचर की जो चीजें हैं, गाइडेंस है, उन्हें समझ नहीं पाते हैं, और जो हमारे संत महात्मा की भी जो वाणी है, ग्रंथ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उसका उल्टा अर्थ निकालते हैं या फिर उसका अर्थ सही मायने में नहीं समझ पाते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनका ब्रेन है वो आईक्यू लेवल थोड़ा कम रहता है, और उन्हें इश्यूज आता है चीजों को समझने के लिए, टीचर क्या बता रही है, क्या सुना जा रहा है, वो सुन के वो विजुलाइज कैसे करना है, कैसे समझना है। तो ऐसी जो समस्या है, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को है, तो यकीनन आपका आज्ञा चक्र है वो करप्ट है, आपको उसमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से जो भी चक्रा है हमारे, कहीं ना कोई नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न, या कोई ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस आपकी मेमोरी में, आपके बॉडी में जमा है, जिसके कारण भी आपका चक्रा ब्लॉक हो सकता है। तो दोस्तों आपको भी देखना चाहिए कि बाकी सब लोग आगे बढ़ गए फील्ड में, और मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे हूँ। अगर आपको अपना फ्यूचर आप विजुलाइज नहीं कर सकते, फ्यूचर में आपको क्या जरूरत पड़ने वाली वो नहीं विजुलाइज कर सकते, तो यानी कि आपका यह आज्ञा चक्रा करप्ट है। और वैसे ही यदि ये चक्रा ओवर एक्टिव है तो क्या होगा कि आप रेस्टलेस फील करेंगे, आपका जो फ्लो है, आपका जो विचारों की श्रृंखला है उसमें ब्रेक आएगा। यानी कि अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ लेकिन मेरे मन में विचार चल रहा है कि अरे वो सामने क्या है, या फिर मुझे इसके बाद कुछ और करना है। आप अगर कोई एक काम ठीक से नहीं कर पाते हैं और 10 मिनट में ही आपकी सोच बदल जाती है, आपके विचारों
कि स्पेस कभी बहुत फास्ट, कभी बहुत स्लो हो रही है, तो आपको कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी आएगी। और यही प्रॉब्लम हम पाते हैं हमारे एडीएचडी चाइल्ड में और ऑटिस्टिक चाइल्ड में। तो हाइपर एक्टिव चाइल्ड में ये समस्याएं आती है। बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि लिटरली ये नाइटमेयर्स देखते हैं, यानी बुरे ख्वाब आते हैं इनको, या कुछ छोटी सी घटना हुई उसके साथ ये इतने उससे अटैच हो जाते हैं वो एनर्जीज से कि डार्क एनर्जीज को इनवाइट कर लेते हैं और ये भयभीत हो जाते हैं और हर चीज में इन्हें शंका होती है। तो यदि ऐसी कोई बात है कि आप ब्रह्म की दुनिया में, जैसे बहुत बार होता है कि सम पीपल्स कॉन्स्टेंटली दे आर सीइंग इविल स्पिरिट्स, नेगेटिव एनर्जीज, सो विच इज अ डिल्यूजन अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, इट्स नॉट अ रियलिटी। सो ऐसी कोई बात है तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास हीली है, हमारे पास हीली है। सो इट्स अ इजीएस्ट थिंग फॉर दिस आज्ञा चक्रा इज कि हम ये समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर रघु विल लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम यू ऑल्सो अबाउट Yeah, योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड सम इंटरेस्टिंग केसेस। करेक्ट। एक्चुअली ये मैं आज्ञा चक्र बच्चों में ज्यादा मैं यूज करता हूँ, क्योंकि बच्चों में डर लगना, छोटे छोटे से विषय में डर लगना, और बड़ों में एक्सेस सोच, फॉर एग्जांपल मेजरेबल सोच बोलते, थोड़े लोगों मेजरेबल सोच, मेजरेबल आइडियाज रहते, वही उनका स्टोरी सुनते तो अनमेजरेबल, उनका स्टोरी मेकर्स बोलते हैं। तो लोग बहुत ज्यादा बात करते रहते, उनका बात का कंट्रोल नहीं रहता, और वो एक बात करते, वो एक बात करते, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस रहता है, और उन लोगों से दुनिया दूर होते रहते। दुनिया दूर होने का मतलब क्या है? उनके पास नॉलेज रहता, उनके पास सब कुछ रहता, और जब वो बात करना शुरू करे तो उनका नॉलेज इतना हो जाता कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता। उन लोग नहीं मानते कि भाई उनको क्या चाहिए सामने वाले को, हमारे पास जो है वो डिलीवरी नहीं करना है, सामने वाले को जो होना है वो देना है। तो ये परसेप्शन जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। वैसे जो डिस्टर्ब लोग है ना, उन लोगों के लिए ये आज्ञा चक्र इम्बैलेंस है। तो ऐसे मैं बहुत सारे कैरेक्टर सोसाइटी में देखते रहता हूँ, और ज्यादा हाई पोजीशन में रहते, इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, नहीं तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेस पीपल है, वो बात करते रहते, बात करते रहते, उनको अगर मौका मिला तो बात करना शुरू कर देते, वो कोई भी चीज रहती, और उसके एंड नहीं रहेगा, और एक बात से दूसरा बात, दूसरा बात से तीसरा बात, उनका जो लिंक ऑफ बात है ना वो अनलिमिटेड हो जाता है। सामने वाला थक जाता है, इतना बात नहीं सह सकता। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ आज्ञा चक्र। ऐसे मैं मेरे जो सराउंडिंग में मैं कई लोगों को, इवन अपने हीली ग्रुप में भी मैं कई लोगों को मिला, उन लोगों का क्वेश्चन एक रहता है, उनका पूछने का अलग रहता है, और उनका जब वो बोलना शुरू कर दिया, मेरे को आके क्वेश्चन पूछते, डॉक्टर साहब आपको 13 साल का फ्रीक्वेंसी में एक्सपीरियंस है, और आप टाइम वेवर स्पेशलिस्ट हो, एक आज्ञा चक्र बारे में आपको एक डाउट है बोल के मेरे को पूछते, मैं वो डाउट क्लियर करने तक ही वो शुरू कर देते, वो लोग मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस वो खुद बोल देते। तो जब मैं वो टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं सुनना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, मैं सोचता हूँ दिल में कि मेरा आज्ञा चक्र वीक है, उनका आज्ञा चक्र स्ट्रांग हो गया। तो इस तरीके से इम्बैलेंस लो, क्यों ये सब मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि ये आपको जब हीली यूज करते हो, प्रैक्टिकली डेमो देने के लिए इन चीजों पे आप कमांड कर सकते हो। अगर ऐसा कोई बात कर रहा है, उनको ये हीली डिवाइस डेमो के लिए दीजिए 1 वीक के लिए। 1 वीक के बाद उनके घर के वालों को पूछिए, आजकल आपके सर, आपका मैडम ऐसा बात कर रहे क्या? अब वो बात नहीं कर रहे, बोले वो आपको बोल दिए, तो आपका हीली काम कर रहा है, सिंपल है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर यूज कर सकते, बच्चों में डर के लिए यूज कर सकते, कंफ्यूजन के लिए यूज कर सकते, और कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आज दुनिया में बच्चों को स्टडीज में कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे को कंसंट्रेशन नहीं है, वो बच्चा इंस्टीट्यूशन में कैसा राज आएगा, मीन सक्सेस कैसा होगा? आप इंस्टीट्यूशन का पैसा भर रहे हो, आप फीस भी भर रहे हो, मगर उसको कॉन्सेंट्रेट। इसी तरीके से ADHD-ADS जो ऑटिज्म बच्चे बोलते हैं, उनके अंदर भी मैं देखा कि कंसंट्रेशन कम होने से उन लोगों का अटेंशन टुवर्ड्स पेरेंट्स, आई कांटेक्ट नहीं रहता। तो मैं प्रैक्टिकली उन लोगों के लिए ये आज्ञा चक्र यूज करा। इसके साथ एडिशनली अपना लर्निंग प्रोग्राम है, जो मेंटल बैलेंसिंग प्रोग्राम है, और कंसंट्रेशन प्रोग्राम है, लर्निंग प्रोग्राम है,
उन दोनों को हम इंटीग्रेट करके ये आज्ञा चक्र चलाने से बच्चों में कंसंट्रेशन माने आई कनेक्शन, आप देखिए एडीएच बच्चों को आई कनेक्शन नहीं रहता, तो ये आई कनेक्शन को कनेक्टिविटी लेके आएगा। आई कनेक्शन कनेक्टिविटी लेके आएगा तो आपको बच्चों का लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो ये आज्ञा चक्र से इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। और फिजिकल लेवल में वेरी इंपॉर्टेंट, हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, जैसा विजन प्रॉब्लम्स है, इन सब चीजों के लिए ये चक्र आप यूज कर सकते हैं। मेंटल लेवल में अभी तक मैं बताया कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी पे यूज कर सकते हैं। जैसे ओल्ड एज में डिमेंशिया हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, उन लोगों के भी आज्ञा चक्र यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र से पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, जो ब्रेन में अट्रोपी बोलते हैं, माने कम्युनिकेशन वीक हो गया, माने पिट्यूटरी पीनल के बीच में कम्युनिकेशन कम हो गया, तो मेमोरी लॉस हो गया, तो उसके लिए भी आप ये प्रोग्राम यूज कर सकते हैं एडिशनली सपोर्टिंग के लिए। और स्पिरिचुअल लेवल में वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको हर चक्रा में 3 लेवल आपको कवर कर रहा हूँ। तो फिजिकल लेवल हो गया, मेंटल हो गया, स्पिरिचुअल लेवल में जो स्पेस के बारे में बात कर रहे थे, जो ब्लू कलर के लिए बात कर रहे थे, आप फिर एक बार पीछे जाइए तो विशुद्ध क्या हो गया, ब्लू हो गया। आज्ञा क्या हुआ, ब्लू हो गया। तो ब्लू क्या है, अनंत बोलते हैं, आकाश बोलते हैं। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो, स्पेस, ये सब क्या है, अनंत है, ब्लू कलर में दिखता है। समुद्र ब्लू कलर में दिखता है, तो ये सब क्या है, इन्फिनिटी बोलते हैं, माने इसके लिए कोई हद नहीं है। आप यहाँ बैठ के अमेरिका जा सकते हो आपके सोच से, यहाँ बैठ के आप स्विट्जरलैंड जा सकते हो, यहाँ बैठ के आप दिल्ली जा सकते हो। तो यू कैन ट्रेवल एनीवेयर थ्रू योर माइंड। फिजिकली आप नहीं जा सकते हो, फिजिकली आपको वीजा चाहिए अमेरिका जाने के लिए। मेंटली जाने के लिए वीजा चाहिए क्या? अगर आप किसी के बाद मेरे बाजू में आके बैठने के लिए आपको वीजा चाहिए? नहीं। वहां से आप समझो कि मेरे बाजू में आप बैठ गए, तो विजुअलाइजेशन, ठीक है। ये सब कौन कर सकता? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र वन विच विल ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया पूरा ट्रेवल करने वाला दो ही चीज है, एक आपका वॉइस, दूसरा आपका थॉट। तो ये है आज्ञा चक्र। तो इन आज्ञा चक्र को जो लोग एक्सेलरेट करके जो बैलेंस रखते, इनको अच्छा बुरा का ज्ञान होता है और सामने वाले को समझने का ज्ञान होता है। नॉट ओनली दैट, सामने वाला का ग्लोबली हेल्प करने के चांस होता है। एक स्पीच, फॉर एग्जांपल एक गुरु जी है, नहीं तो एक प्रेयर करने वाले है, वो उनका एक स्पीच दुनिया पूरे को हिला देता है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आज्ञा चक्र। सो विशुद्ध में पावर के लिए आज्ञा से इम्प्लीमेंटेशन, सो इम्प्लीमेंटेशन से क्या हुआ, ग्लोबल हार्मोनाइज हुआ है। तो ये है लॉजिक इसके बीच में। नेक्स्ट। सो दिस आज्ञा चक्र दोस्तों, अगर आपको बैलेंस करना है तो अकॉर्डिंग टू नेचर हीलिंग, ब्लू एंड पर्पल कलर के जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स है आप उसका इंटेक कर सकते हैं, जैसे कि एग प्लांट है, ब्लू ग्रेप्स है, ब्लू बेरीज है, कैबेज है, पर्पल कैबेज आता है, फिक्स है, ये उसका अच्छा सोर्स है। और दूसरा अगर हम देखें तो कुछ नेचुरल टिप्स है, जैसे कि इफ यू स्पेंड 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी सनराइज एंड सनसेट, ये जो टाइम है ये भी आपके आज्ञा चक्र को एनहांस करेगा। और जैसे कि बहुत बार, जैसे कि मेरे पीछे भी वहां पे कैंडल्स रखी हुई है, सो कैंडल फ्लेम को जब हम गेजिंग करते हैं, सो इट इज ऑल्सो इन वन वे, जैसे कि हम देखते हैं ना हीलर्स एंड साइकिक पीपल्स, दे प्लेस कैंडल्स, तो वो भी एक तरीका है आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करने का। और जो भी हमारे इंडियन कल्चर में सत्संग और संकीर्तन का बहुत ही महत्व रहा है, तो जब भी दोस्तों हम कोई भजन सुनते हैं या गाते हैं, हम कोई मंत्रा चैंट करते हैं, हम कोई अभंग वगैरह प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा ये जो थर्ड आई चक्र है वो भी उससे एक्टिवेट होता है। इसीलिए हमारी संत परंपरा में अभंग भजन कीर्तन की परंपरा रही है। और आज के जमाने में लोग बोलेंगे कि हम भजन क्यों गाए, तो जो भी यंगर क्राउड है, हम जो गेम्स खेलते हैं, सुडोकू है या पजल गेम्स है, तो ये सारी जो गेम्स है, इवन वो ब्रेन, वी कॉल इट
अंताक्षरी या फिर बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो बेसिकली हमारे ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करती है और इससे हमें ये आता है। और थर्ड आई चक्रा में दोस्तों मैं कहना चाहूंगी ऑल टाइप ऑफ हेडेक्स आर कवर्ड, वेदर इट्स अ माइग्रेन, वेदर इट्स अ साइनोसाइटिस, और वेदर इट्स अ exertion, or whether it's something else, pathological headaches, all headaches are covered here, and all vision problems are also covered here। और hormonal issues भी ये cover करता है, और बैक ऑफ द नेक के भी कुछ इश्यूज है वो भी वो कवर करता है। तो ये हमने जानी कुछ जानकारी आज्ञा चक्र के बारे में। तो thank you so much for your love and concern. Now we are coming to the almost we have reached to the end of the program. The last but the most important chakra, Sahasrar chakra. So this Sahasrar chakra is located at the top of the head, and it is also known as crown chakra, crown center. Its color is a light purple, you can say that is the color of the Sahasrara chakra. And this Agna chakra and Sahasrara chakra, both the sound is Om. Om is a pranav mantra, and it's a completion thing. So everything starts with Om and everything ends with Om. So even if you are chanting Om, it can enhance your third eye chakra as well as Sahasrara chakra. There is a particular method of chanting this Bij mantra of each and every chakra. So in Healy, we have a blue app, we have a aura scan. So if you want to record in your own voice seed mantra of the chakra, you can record in your own voice, and you can vibrate it and you can get benefit also. Same like we have Gayatri mantra and other mantras also, that also you can utilize for this thing. I'll just narrate how to pronounce Om, how to chant mantra Om. So basically A, U, Ma, ये 3 अक्षर मिलके ओम शब्द होता है. Some people spell it as a OM, Om, and usually, and the other way is Om, that is A, U, and M. So for chanting Om mantra, you have to take deep breathe from the navel, यानी नाभि से आपको गहरी सांस लेनी है. ओम शुरू करते हैं, नाभि से आएंगे, ऊपर आएंगे, और म बोलते वक्त आपके दांत बंद होने चाहिए, यानी आपके पैलेट में और नाक के पीछे के जो एरिया है वहां पे म का वाइब्रेशन जाके ब्रेन तक पहुंचना चाहिए. तो ये है सही तरीके से ओम मंत्रा चैंटिंग करना. आई जस्ट शो यू द एग्जाम्पल, मैं बताती हूँ आपको. मुद्रा आप कोई भी ले सकते हैं, पद्मासन मुद्रा रहता है या सिटिंग आपका आसन है वो. आंखें क्लोज करनी है, आप थर्ड आई पे फोकस कर सकते हैं और नाभि से गहरा सांस लेके आओ, यानी नाभि से लेके यहाँ तक मेरे स्पंदन गए. तो ये जो हमारा जो सहस्रार चक्र है, इसे सहस्रार क्यों कहा गया है कि जब हेड से लेके टो तक, यानी आपके सर से लेके नीचे पांव तक जो भी आपके एनर्जी सेंटर से वो जब अलाइनमेंट में आ जाते हैं और आप यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं, वननेस जब हो जाती है, तभी हम बोलते हैं कि हमारा क्राउन चक्रा है एक्टिवेट हुआ. दोस्तों ये जो हमने 6 चक्रा किए वो तो हम कोई मेथड से ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्राउन चक्रा है उसका एक्टिवेट होना पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं है. वो यूनिवर्स ने, नेचर ने अपने कंट्रोल में रखा है. तो जो भी सिद्ध पुरुष हो गए हैं और बहुत ज्ञानी महात्मा हो गए हैं, उनके क्राउन चक्रा एक्टिवेट होते हैं. और अगर इसे मैं एक ही शब्द में कहना चाहूँ तो समझ लो आपकी 1000 पंखुड़ी वाला कमल, यानी कि सहस्रार. हर चक्रा को हमने कमल की उपमा दी है क्योंकि कमल हर एक तत्वों को अपने भीतर समावेश कर लेता है. तो जब यानी आपके मेंटल, स्पिरिचुअल, मेटाफिजिकल
इतनी प्रोसेस हो गई है, और आप यूनिवर्स के साथ इतनी वननेस में चले गए हैं कि अब आपको यू आर टोटली वन विद द यूनिवर्स, यानी आप बियॉन्ड टाइम चले गए, बियॉन्ड बॉडी चले गए, आप अपने एग्जिस्टेंस से इतने ऊपर चल गए, जिसे हमने यही चीज को हमने हमारे धर्म में निर्वाण का नाम दिया गया है, मोक्ष बोलते हैं। तो ये जो सहस्त्रार चक्र, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक तो आपको इंसाइट देता है अपने अपने और यूनिवर्स के अंदर झांकने की, वननेस फील करने की, और दूसरा बाकी के जो भी चक्रास है वो चक्रास को भी ये एनर्जाइज करता है, बैलेंस करता है। जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी में एंटर होती है, तो क्राउन चक्रा से जब हम अर्ली मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, क्राउन चक्रा से एनर्जी आती है और फिर दूसरे चक्रा को डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में एवरीडे अर्ली मॉर्निंग जो टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, उसे साधना का, तपस्या का टाइम गिना गया है। और आज भी जो ये चीज को मानते हैं वो 3 to 5 के बीच में रेगुलर साधना करते हैं, और उनके जीवन में हम इसके रिजल्ट भी देखते हैं। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल इज अवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कि जो अभी फिलहाल साधना कक्ष में थे, मौन भी उन्होंने रखा था। तो ये जो सहस्त्रार चक्र है, इसका एलिमेंट है वो है स्पेस, यानी आकाश, यानी ये अनंत है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो मुख्यतः है पीनियल ग्लैंड, क्योंकि पीनियल ग्लैंड बहुत ही, एक तरह से देखा जाए तो रहस्यमयी ग्रंथि है। इसके रहस्य है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो यूनिवर्स के रिकॉर्ड में है। तो ये जो ग्रंथि है, ये जो ग्रंथि है बहुत ही कमाल की ग्रंथि है। सहस्त्रार चक्रा का जो प्रभुत्व है वो ज्यादा करके सेंटर ऑफ द हेड, मिड लाइन में, कान के ऊपर का जो हिस्सा है वो ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा इसमें गिना गया है। ये जो चक्रा की जो पॉजिटिव एनर्जी, यानी अगर आप ये चक्रा को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो एक ही सूत्र है उसका, सरेंडर। सरेंडर यानी समर्पण, सम अर्पण। तो जब आप कुदरत से इतने घुलमिल जाते हैं और कुदरत के रहस्य को जब आप जानने लगते हैं, तो आपका अहंकार विलीन हो जाता है, आपकी आइडेंटिटी विलीन हो जाती है, और हम जिसे सुप्रीम बोलते हैं, डिवाइन बोलते हैं, कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, जो ईश्वर बोलो या जो भी आप हायर ऑथोरिटी, हाईएस्ट ऑथोरिटी बोलते हैं, उसके सामने हम घुटने टेक देते हैं। जैसे हम डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हम तो सिर्फ दवाई देते हैं, आपको डायग्नोसिस करते हैं, आपको जो पॉसिबल है वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, बट क्योर है वो तो ऊपर वाला करता है। तो वही ऊपर वाला है, किसी कोई हर एक धर्म के हिसाब से उसे अलग अलग नाम दिया गया है, बट है तो वो कॉस्मिक एनर्जी ही। तो ये जो है कि ये आपकी मनुष्य जन्म की यात्रा को कंप्लीट करता है। और ये जो चक्र है, इसकी नेगेटिव इमोशन अगर देखें कि यानी आप अगर बात बात में आप बहुत खफा रहते हैं, नाराज रहते हैं, और आप खुश नहीं है जिंदगी से, अब बात बात पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीजें समझ नहीं सकते, आपको कोई चीज लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका ये जो सहस्त्रार चक्र है वो खुला नहीं है, क्लोज्ड है। और अगर आप मेडिटेशन, प्रेयर्स या हमारे हीली के भी सहस्त्रार चक्र प्रोग्राम है वो अगर लेंगे, तो आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे यूनिवर्स से, और जैसे यूनिवर्स से अलाइनमेंट होगा तो आपका चक्र एक्टिव होगा, कॉस्मिक एनर्जी पास होगी आपकी बॉडी में, और आपके दूसरे इश्यूज को भी हील करने में क्राउन चक्र हेल्प करेगा। ओवर टू डॉक्टर रघु, हम आपसे कुछ और जानना चाहेंगे। या सहस्त्र चक्र, सहस्त्र चक्र ऐसा चक्र है, अभी तक मैं बता रहा था ग्लोबल इंफॉर्मेशन फील्ड, उसके ऊपर है यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन फील्ड। आपने केवाईसी फिजिकल बॉडी बताया था, वो आपको अनाथ चक्र तक है। उसके बाद में विशुद्धा से लेके जो आग्नेय चक्र तक
आप ग्लोबल इंफॉर्मेशन फील्ड पे काम करें। अभी फाइनली वी आर रीच स्पिरिचुअल लेवल, यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन फील्ड, माने टोटल सृष्टि ब्रह्मांड के में मिलना, ब्रह्मांड में सहस्र चक्र कनेक्ट होना, वही स्पेस ऑफ अल्टीमेट बोलते हैं। तो इसको वननेस बोलते हैं। सो कॉन्शियसनेस लेवल में जो वननेस जो प्लेस बोलते हैं वही सहस्र चक्र। सहस्र चक्र को रीच करने के लिए योगा सिस्टम में बोले थ्री थ्री ब्रीथ इनसाइड बोले। जैसे ये जो आपका ब्रूगिटी है ना, सेंटर ऑफ द ये आग्नेय चक्र, ब्रेन का जो सेंटर है, उन दोनों से 3 ब्रीथ अंदर चले गए तो उसको जो टॉप ऑफ थी उसके ऊपर जो रहता है वो सहस्र चक्र है। तो इसका यूनिवर्सल में इसका डेफिनेशन है, जैसे पुरुष सूक्त में बोलते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्रपात सबूमि विश्वतोष्टा अष्टदिश दशांगुड़ा। मीन्स ये जो यूनिवर्स बना है, जो डायमेंशन है, सहस्र मीन्स 1000 डायमेंशन वाला चक्र। यहाँ ये जो पंखुड़िया बोल रहे हैं, जो चक्रों, अब तक जो चक्रों का पंखुड़िया आप देखते गए, फाइनल में बता रहा हूँ, एक चक्र में आपको 5 पंखुड़ी मिलेंगे, एक चक्र में 2 पंखुड़ी मिलेंगे कमल के, मगर ये सहस्र चक्र में मिलेंगे आपको 1000 चक्र। मीन से 1000 डायरेक्शन, 1000 डायमेंशन वाला चक्र है। ये 1000 डायमेंशन वाला जो सहस्र चक्र है, ये अपना पीनल ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है फिजिकल लेवल में, और ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे काम करता है। जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वेगस नर्व्स हो गए, वेजिटेटिव नर्व सिस्टम हो गए, बाकी जो भी बॉडी में जो नर्व सिस्टम है वो सबको सहस्र चक्र रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट। या सो ये जो चक्र है, ये कैसे पता चले कि आपको ये चक्र जो करप्ट है या डेफिशिएंट है इसकी एनर्जी, जब आप ज्यादा करके कंफ्यूज होने लगे और आपको चीजें प्रैक्टिकली समझ में ना आए, आप चीजों का अनुभव ना कर सके, कोई भी ज्ञान हो, कुछ भी सीखना हो, उसमें आपको दिक्कत आ रही है, और आप नई टेक्नोलॉजी, नई इंफॉर्मेशन, मतलब आप के अंदर जो जज्बा होना चाहिए सीखने का, वही अगर खत्म हो जाए, तो आप सोच लो कि ये चक्र करप्ट है। ऑल्सो वेरी रिजिडिटी अबाउट द रिलीजन, और जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है, लोग अपना लाइफ पर्पस भूल जाते हैं। समटाइम्स दे आर वेरी एंशियस, आपको लगता है आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, और हर चीज में आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। तो दिस इज द टाइम कि आपको ये चक्र है वो डेफिशिएंट है। और अगर ये सहस्रार चक्र जो है जरूरत से ज्यादा अगर अधिक ऊर्जावान हो गया और बाकी के चक्र का बैलेंस नहीं हुआ, तो आप पा सकते हैं कि आपके पास में ज्ञान भी है, अतीन्द्रिय ज्ञान भी है, लेकिन आप वो ज्ञान के साथ आपके अंदर कुछ दुर्गुण भी है, जैसे कि लोभ आ सकता है, आपको एक स्पिरिचुअल एडिक्शन यानी कि एक बोलते हैं ना कंपल्शन मोड आ सकता है, और आप इतने अपनी बिलीफ सिस्टम में रिजिड है कि आप वर्तमान में नहीं रहते हैं। तो लिविंग इन प्रेजेंट, ये मेन इंडिकेशन है कि आपका चक्र बैलेंस है, यानी आप समय के साथ चल रहे हैं, और आप भूतकाल से भी पास से भी आप अफेक्टेड नहीं हुए, उससे निकल आए, और फ्यूचर के बारे में आप देख रहे, सोच रहे, लेकिन फ्यूचर के बारे में अत्यधिक चिंता या फिर नेगेटिविटी नहीं है। हमें जो भी वर्तमान में है, वर्तमान में हर क्षण का आनंद। तो ये जो चीज है वो ये सहस्रार चक्र हमें प्रदान करता है। यानी कि मैं कहना चाहूंगी कि ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये चक्र बैलेंस है। तो जब आप सेल्फ अवेयरनेस मोड पे है और आप यूनिवर्स के मैसेज को डिकोड कर सकते हैं, आपको गाइडेंस आ रहा है। आप जैसे डॉक्टर रघु ने बताया कि ये जो चक्र है, थर्ड आई चक्र खुलने के बाद में यू कैन टॉक विथ स्पिरिट्स, यू कैन टॉक विथ हायर लेवल फ्रीक्वेंसी एनर्जीज, मास्टर्स, असेंडेंस मास्टर्स, गुरुज, you can communicate and you can be there with them without physical presence, and आपकी इंट्यूटिव कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है, इंट्यूटिव एबिलिटीज, कि आपको आप मतलब जैसे आप
कोई तो हमें चला रहा है और हम चल रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं निर्देश से, और हमारा जो हायर पर्पस है लाइफ का वो भी फुलफिल हो रहा है। तो हम हमारी खुद की हायर सेल्फ से जुड़े हुए रहते हैं, तो समझ लो कि आपका ये चक्रा बैलेंस है। कुछ चीजें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप नेचुरल ऐसी क्या प्रोसेस है हम करें, आपका सवाल होगा कि चाहे हमारे में इतना ज्ञान तो नहीं है, बट फिर भी हम क्राउन चक्रा को कैसे हम संतुलित कर सकते हैं हमारी रोज की जिंदगी में। तो हर चक्रा के लिए फूड है हमारे पास। जैसे हार्ट चक्रा के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स है, और हमने सोलर चक्रा के लिए येलो कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, स्वादिष्टान के लिए ऑरेंज कलर है, रूट चक्रा के लिए रेड कलर है, हमने थ्रोट चक्रा के लिए ब्लू कलर देखा, और थर्ड आई के लिए पर्पल कलर भी देखा, ब्लू कलर भी देखा वैसे। बट ये जो है चक्रा, ये एक में ऐसा चक्रा है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए बेस्ट रेमेडी इज द फास्टिंग, यानी डिटॉक्स। सो वही जो हमें नेचुरल डिटॉक्स करता है, सेम वी हैव हीली मैगिली में वी हैव डिटॉक्स प्रोग्राम्स। सो नेचुरल डिटॉक्स जब हम करते हैं, यानी कि आप बिना कुछ खाए पिए जब सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी पे रहते हैं, तो ये चक्रा एक्टिवेट होता है। इफ यू आर इवन ऑन डूइंग वाटर थेरेपी, तो भी ये चक्रा आपका एक्टिवेट होगा। और आज के जमाने में तो इतना कड़क फास्टिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो जैसे मेरे जैसे कुछ लोग हैं कि 8 आवर्स 10 आवर्स फास्टिंग किया, या फिर 8 आवर्स 10 आवर्स लिक्विड थेरेपी की, तो ग्रीन वेजिटेबल जूस है, कोकोनट वाटर है, जब आप ऐसे नेचुरल चीजें लेते हैं, इससे भी ये चक्रा है वो कई तरह से आपको एक्टिवेशन इसका होगा। और सबसे बड़ा कुछ योगासन भी ऐसे है कि जैसे शवासन है, शीर्षासन है, लोटस पोज है, इसमें बैठते ही आपका ये चक्रा है उसका अनुसंधान होने लगेगा। और ओम चैंटिंग जैसे मैंने बताया। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हर योगी और महात्मा, जो जो भी स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज है वो करती है, वो डेली सुबह एवरीडे रेगुलर मेडिटेशन। सो अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन विल हेल्प यू। जब हमारे दिनचर्या शुरू नहीं हुई है, हमारे मन में कोई दूसरे विचार नहीं है, कोई भौतिक लालसाएं नहीं है, ये जो वक्त है वो क्राउन चक्रा के लिए बेस्ट बताया गया है। तो प्रेयर्स, और दोस्तों प्रेयर्स में जैसे डॉक्टर रघु ने बताया, प्रेयर्स के वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, आपकी इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, आपका कनेक्शन और आपका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो यही लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे प्रेयर्स रिचुअल्स बने हैं। तो चाहे आप अपने शब्दों के द्वारा, जैसे दुर्गा कवच है या दूसरे देवी कवच है जो भी आप पढ़ते हैं, एक जो हम दुर्गा सप्तशती बोल के करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं हम, बहुत सारे दूसरे हैं ऐसे, उससे आप करें। या फिर दूसरा एक ऑप्शन है कि आप मन में भी अगर प्रेयर्स करते हैं, तो इससे भी आपके क्राउन चक्रा को एनर्जी मिलती है, बल मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, वेरी सिंपल, ये कोई भी कर सकता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप सबको नमस्ते किया, तो ये जो नमस्ते मुद्रा है, अंजलि मुद्रा, ये ऐसी मुद्रा है कि जो आपको डायरेक्टली आपकी क्राउन चक्रा से कनेक्ट करती है, और आपके आजू बाजू एक डिवाइन प्रोटेक्टिव एनर्जी का भी आप ऐसा, क्योंकि जैसे हाथ जोड़ते हैं ना हम, हमें एनर्जी फ्लो हो रही वो फील होता है, चाहे आप बैठे हो खड़े हो। और यही परंपरा हमारी रही है, गुरु परंपरा प्रणाम करने की भी रही है। तो जो असली जो तरीका है प्रणाम करने का, वो भी वही है कि हम पैर के अंगूठे को स्पर्श करते हैं अपने हाथों से। तो सामने वाले जो गुरु जो है, संत है, उसके अंदर जो ज्ञान का एनर्जी का प्रवाह है वो हमारे शरीर में संचारित होता है। और इसे ही दीक्षा बोला गया है, शक्तिपात बोला गया। वन ऑफ द फॉर्म ऑफ शक्तिपात इज दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। सो साइलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्राउन चक्रा। हमारी इतनी भागदौड़ की जिंदगी में हमें 5 मिनट 10 मिनट शांति से बैठने का ही वक्त नहीं है। अगर यूनिवर्स हमें कुछ मैसेज देना चाहे, कुछ गाइडेंस देना चाहे, तो कैसे दे, कब दे? क्योंकि हम हर वक्त भरे हुए हैं,
ये टारगेट पूरा करना है, यहाँ जाना है, ये खाना है, ये पीना है, ये नहीं है, वो नहीं है, मोबाइल मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी यूज करते हैं, गैजेट्स यूज करने के लिए है, लेकिन हम उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। तो आज की टेक्नोलॉजी के इसमें डिटॉक्स मोबाइल का भी होना चाहिए दोस्तों, कि कुछ वक्त आप ऐसे रखो अपने साथ कि आप शांति से बैठे हैं। और अगर यही शांति आ जाए तो मुझे 100% गारंटी है कि जितने भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, पैनिक डिसऑर्डर्स है, जितने भी ब्रेन डिसऑर्डर्स है, ये सब रिकवरी मोड अच्छे से अच्छा हो सकता है। साइलेंस में इतना पावर है। तो दोस्तों ये थी कुछ चीजें। और एक चीज है कि आप कुछ ऐसे रंगों का अगर इस्तेमाल करेंगे जो थोड़ा वार्मथ दे आपको, जैसे कि येलो कलर है, ऑरेंज कलर है और रेड कलर है, तो इससे भी आप पाएंगे कि इससे भी आपका क्राउन चक्रा है, उससे एनर्जी मिलती है। और शायद यही रीजन है कि हमारी अलग अलग धर्म में ये सभी रंगों को शामिल किया गया है। यानी हमारा जो पहरवेश है उसमें सूफी में ऑरेंज रंग है, सूफी संतों का। और ज्यादा करके हमारे स्वामीनारायण संत में भी ऑरेंज रंग पाया गया है। कुछ जैसे वैष्णव परंपरा में येलो रंग का ज्यादा महत्व है, कृष्णपंथी में। और शिवपंथी है उसमें लाल रंग का महत्व है। माता का जो है, देवी का है, उसमें रेड रंग का है। तो ये रंगों से भी आप अपने चक्रा को संतुलित कर सकते हैं। और अगर आप यदि ये कुछ भी ना करना चाहे तो सबसे आसान तरीका है हमारे हीली और मैगिली प्रोग्राम्स। मैगिली में तो हमारे पास सातों चक्रा को बैलेंस करने का चक्रा बैलेंसिंग इतना वंडरफुल प्रोग्राम है। सो डॉक्टर रघु, जैसे कि मैं कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में आपके मुंह से सुनना चाहूंगी और कुछ हीली थेरेपी के बारे में भी जानना चाहेंगे हम सब। या तो ये सहस्त्र चक्रा में आप सामने देख रहे हो, कोमा बोल के दिया है डिसऑर्डर में। अगर पेशेंट कोमा में है तो हम लोग डॉक्टर्स, जब आप लोग पेशेंट्स हॉस्पिटल में जाते हो, आईसीयू में पेशेंट कोमा में है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट क्या है? टाइम टाइम पे छोड़ दें। ट्रीटमेंट टाइम पे माने उनको फिजिकली जो भी एलिमेंट्स है उसको बैलेंस करते हुए कोमा से बाहर आने तक हम लोग वेट करते हैं। तो व्हाट इज दैट एग्जैक्ट? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द यूनिवर्स एंड द सहस्रार चक्र से जो प्राण शक्ति जो मिलना है ना, वो कम हो रहा है। तो उसको कमी को फुलफिल करने के लिए हमने को टाइम लगता है। देखिए कितना वंडरफुल फिजिकल बॉडी को और सहस्रार चक्र को कम्युनिकेशन हम पाते हैं। और जो भी हेल्थ कंडीशंस है, जैसे कि ब्रेन रिलेटेड कोई भी हेल्थ कंडीशन है, उसमें सहस्रार चक्र फिजिकल में यूज करते हैं। मेंटल लेवल में ये जो यूज होता है, ये आपको साधना करने के लिए यूज होता है। मेंटल लेवल जो साधना माने मेडिटेशन करने के लिए आपको माइंड पावर चाहिए, उसके लिए सहस्रार चक्र यूज होता है। और स्पिरिचुअल लेवल में यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन फील्ड में जाके अभी तक जो वंदना जी बता रहे थे, गुरु लोगों को मिलना है, जो अपने एंशियंट जो साधु संत लोग अभी भी करते रहते कि यूनिवर्सल ट्रैवल करते हैं, तो वो ट्रैवलिंग के लिए ये जो सहस्त्र चक्र एक्सेलरेशन स्पिरिचुअल लेवल पे चाहिए। तो उन लोगों को ही बोलते हैं मुनि। जो मुनि बनते हैं ना, उन लोग सहस्त्र चक्र को कॉन्कर करते हैं और दे ट्रैवल, फिजिकल बॉडी को यहाँ रखते हैं और यूनिवर्सल फील्ड में जाके ट्रैवल करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अबाउट स्पिरिचुअल लेवल। तो अब तक आप देखे कि हम रूट चक्रा से लेके जो भी इंपॉर्टेंट चक्रा से सबको उनके रिलेटेड फिजिकल लेवल में ग्लैंड्स को कम्युनिकेट करते हुए हम सहस्त्र चक्रा को पहुंचिए। तो फ्रेंड्स, हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है? आपको हीली के जो चक्रा से अब तक जो भी आपको प्रेजेंटेशन में दिखे है और हमारे जो अनुभव जो टाइम रिलेटेड आपको हम बताते चलेंगे। ऐसा बताना है तो एक एक चक्रा के लिए एक एक दिन लग जाएगा मेरा, मगर उतना आपको जरूरत भी नहीं है। जस्ट आपको समझना हाईलाइट पॉइंट क्या है फिजिकल लेवल में, मेंटल लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में, एंड रिलेटेडली आप किसको क्या चाहिए घर में, नहीं आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सोसाइटी में, आप एक्सेलरेट करिए। अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी करना है तो आप सहस्त्र चक्रा से आप शुरू करिए, विशुद्धा से, फिर आज्ञा से, एंड आपका सहस्रा से। वही फिजिकली आपको स्ट्रांग करना है तो आप रूट चक्रा और 16 चक्रा और 8 चक्रा तक चले जाइए। और इन सबको अलाइनमेंट करना है
तो आप क्या कर सकते हैं, चक्रा बैलेंसिंग प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चक्रा थेरेपीज. So thank you so much giving me this great opportunity. Especially I am very much thankful to our Healy company, our trainer Ram Mishra ji, and also मेरे को हेल्प करने के लिए और जो अच्छा नॉलेज डॉक्टर वंदना जी, शी हैज लॉट ऑफ नॉलेज टुवर्ड द चक्रास. हम कभी मिलते हैं तो हम लोग चक्रास के बारे में और स्पिरिचुअल टॉक हमारा ज्यादा रहता, तो मैं इसलिए उनका सपोर्ट लिया ये प्रोग्राम के लिए, क्योंकि शी इज कनेक्टेड. क्योंकि जो हम लोगों का क्या मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हीली से ही सब कुछ होता नहीं, हीली से भी हो सकता है. तो आप समझे होंगे ये बात मेरा, हीली से सब कुछ होता बोल के नहीं बोल रहे, मगर हीली से भी कुछ हो सकता है. तो इंटीग्रेट करिए आपका साधना में, आपका चक्रास को हार्मोनाइज करिए, देखिए आपको भी हमारा वैसा रिजल्ट मिल सकता. जो बहुत लोग यूज करे और रिजल्ट लिए, और उनका अनुभव से उनका कॉन्फिडेंस लेवल्स देके आपको हम लोग ये सब प्रेजेंटेशन दिए. थैंक यू सो मच. I will like to add one thing today that हमने थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा का बात किया, तो our visionary Marcus, beloved Marcus Simeke जी and Christian Halper जी and जो पूरा टीम है हमारा, फैमिली जो है, टीम भी नहीं, it's a family, so it's a cosmic family and we are so grateful that because of that thing only we are having Healy. We are having universal intelligence and it's just Healy is nothing but it's just like a god. तो घर बैठे गंगा ही ऐसे ही. तो my special regards to both of them and Healy India company also. Thank you so much for giving me this opportunity to share my knowledge and thank you Dr. Raghu. मतलब हर बार आपका मतलब ऐसी और भी मुझे लगता है बहुत सारी बातें, but this was a primary session we have conducted. So according to the feedback, we will definitely like to go on with these sessions. Thank you so much. Thank you. Namaste. थैंक यू डॉक्टर वंदना एंड थैंक यू डॉक्टर रघु. सो आप सबने रियली बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट जो था एक बिल्कुल क्लियर किया हुआ है. मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं रिकॉर्डिंग्स को भेजने के लिए. मैंने कहा है कि सारे लोग एक्चुअली एक ब्रॉडकास्ट में आ जाए तो मुझे आसान होगा भेजने में. आई विल डेफिनेटली सेंड बोथ द रिकॉर्डिंग, सातों के सातों चक्रास को मैं आप सबको कल जो है सबके इनबॉक्स पे आपको मिल जाएगा. आई विल सेंड इट टू यू. थैंक यू वेरी मच. हमारा आज का सेशन थोड़ा लंबा खिंचा है, नो प्रॉब्लम. आने वाले समय में हम और भी बहुत सारे जो है एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो अपने डोमेन में एक्सपर्ट हैं, खासतौर पे फ्रीक्वेंसी में, और हम लोग आपको केटर करेंगे. जाते जाते बस एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो महीना है बहुत ही बेहतरीन महीना है, क्योंकि यहाँ पे आप सबके लिए हमने चैंपियंस लीग जो है वो शुरू किया है. और चैंपियंस जितने हैं उन सब के साथ मुलाकात कहाँ होगी? हमारे रीजनल हेडक्वार्टर जो है हमारा जो है सिंगापुर में, राइट. तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये सारे जितने भी हमारे लोग हैं, अभी मैं देख रहा था 150 से ज्यादा लोग अभी तक 1.5-2 घंटे तक रुके हुए हैं, जो बता रहा है कि दिस इज हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव इन दिस, राइट. सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू लेट्स बिगिन दिस जर्नी. चैंपियंस लीग में चैंपियन बने और हम सब मिलते हैं सिंगापुर में. थैंक यू वेरी मच. रिकॉर्डिंग कल आप सबको मिल जाएगी. धन्यवाद हीली फैमिली हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.